Yes, very good evening, everyone. Let us begin with the queries. बोलो धर्मेंद्र भाई. गुड इवनिंग सर. Very good evening. रिलायंस लेट्स आ रहे हैं. सर थोड़ा सा ऊपर जाइए और थोड़ा सा और थोड़ा जो 49 हाँ ये वाला 1436 एंड 1495 सर स्टिल अप हाँ it is 1541 सर. Which date? Date. 24th अप्रैल. ठीक है. हाँ सर ये जो 1541 जो SNR to sell है that was traded on down 1503 में 1513 में on 7th May. How 1541.35? Yes. Next level will be on 8th May, no? Yes, 8th May. Sorry, 8th May. So not 7th May. 8th May, yes. 1541.35 next level is 61.8%. And we avoid considering any buying from 61.8%. 61.1. It can be yes. 38.2 or above 100%. Yes. So yes, on so, 8th May also buying has not come. Buying has not come. Okay, so we can say that the Godabo series is not not given follow-up. Yes, follow-up buying support. has not come. Follow-up buying has not come. Now, sir, if you see this 6th of May, 1436, SNR to buy support. Now, can we say this was traded today? On lower side. On lower side? Because this stop and use to sell is there. Yes. This stop and use to sell, latest stop and use to sell is there. Yes. इसका lowest price is 1430. 1415. Yes. 1415. This was not traded. Like, respect the recent one, no? If it is lower than that. Okay. Okay, sir. Okay. That's was वही पूछना था sir. Yes, sir. Yeah. Thank you. Anyone else? हाँ ऋषभ बोलो. Yeah, good evening, sir. Very good evening. Sir, could you please open Bharti Airtel? So, Rio, I had a query that on 12th of May, the Gurava series Justified happened, and the PCS got traded on the lower side on 14th. So, when you say the Justified ka PCS breaks, so the we get 5% or journeys towards key low. So actually, we have to consider when WDP trades or PCS trades. What is the lowest one?
the WDP. And the low is 530 half, no? Yeah, sorry, 530 And half. to Yeah. that to this we have said when good above series justify, Hmm. stop and use to sell occurs on same day, then Okay. stop and use to Only. sell comes into action. Yeah. कल हमने जितने भी केस स्टडी लिए, इसके पहले भी जितने भी केस स्टडी लिए, Hmm. good above series justifies and stop and use to sell occurs on same Hmm. day, and then stop and use to sell comes into action by trading lower WDP, whichever is lower. Then So you get the that 5% further. 5%, or we can say the journey is slowly towards kilo. Yes, yes. So this is a plain vanilla. If so, if the I mean hypothetical situation, if the WDP would have traded, then Low, even though we low. sorry low, yeah, the lowest of all would have traded. So then we would have considered a journey towards kilo. Yes. Okay. Okay, the lowest of all. Yeah. Thank you. Sir, my next doubt is on Mindtree. बट वापस वो वाली बात हो गई जो आपको पता नहीं ज्यादा सूट करता है, बाइंग में सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखना. नहीं सर, आई वाज जस्ट लुकिंग एट कि फॉलो अप बाइंग नहीं आई एंड मतलब पीसीएस ट्रेड किया, देन आई गॉट कंफ्यूज्ड एंड आई फॉरगॉट टू सी द लोएस्ट लो आउट ऑफ ऑल. बट सर ग्रोथ इज जस्टिफाई ओके, एसएनआर सेल होना और एसएनआर सेल एक्शन में आना रिवॉर्ड्स मोर देन ग्रोथ इज जस्टिफाइड the oscillating climbing by trades on higher side. Sir, Mindtree mein there's a historical doubt. Can you come to 6th of February 2019? Yeah, 2019, yeah. 6th of Feb. Sir, here, good above series was reactive and it retraced up to PCS. 888.40 was PCS. It retraced up to there. Then it traded the climbing by 909.90 on higher side, but still it was couldn't give 5%. So I was not able to understand this. So please explain me, sir. There was a scope also up to 942.90. Tradable distance was also there. 911.95. There is no in between. This is good above series justified. Yeah. Always no go from the beginning when good above series justifies begun. Maybe आपके साथ देखता हूँ. ये good above series justified, right? Yes, sir. And 934.40 on higher side is not traded. Yes, sir, not traded. So follow buying has not come. Yeah. And instead, good above series justified day PCS, WDP, yeah. low. All the three were traded on lower side. Okay. And in between, stop and use to sell also has come. Stop and use to buy also has come. Okay. So now any rise in price only when 928.95 trades on higher side. Okay. Here good above series inactive occurs. Mm-hmm. And after that, to become reactive, it is to trade master high. So यहाँ पे master high also is traded again, so it has become reactive. Reactive. Yeah. Journey is towards recent high or the recent
stop and use to sell resistance. That 928.95 has worked here. Okay. And that too because why it has taken the resistance here, why the journey was only up to 928.95. The reason is this good above series is justified. Follow-up buying has never come. Yeah. And instead of follow-up buying, low as well as WTP as well as PCS, everything traded on lower side. Okay. But it was saved because of this stop and use to buy support. Yes, sir. But with fresh resistance, it is not traded because this was RMSL lower open. But इतना नीचे तो चला गया ना? Yes, sir. But one fundamental truth is it was never follow-up buying has never come. Yeah. तो जब भी फॉलो बाइंग नहीं आती है, जो भी सीरीज चालू होती है शुरू होती है, अगर उसमें फॉलो बाइंग नहीं आई है तो आगे का इनएक्टिव का अकरेंस, रीएक्टिव का अकरेंस, ये सब नो 5% देना मुश्किल है. So, sir, it's like whenever reactive occurs and it retraces, so it's like what do? I buy some quantity at यहाँ पे ले PCS. लो ना, रिट्रेस पे लो ना, हाँ पीसीएस पे लो ना, लेकिन यहाँ पे पीसीएस also is advisable if follow buying has come in this series, when buying has come, when good above series is justified and follow buying has come, then on every occurrence, every retracement we can buy. Safe, safe. यहाँ पे here it is worked, here it is worked, but this was not safe. Yeah, right. But sir, even though second thing is यहाँ पे after this 934 it is missed, but this 901 post closing climbing was traded higher side here at least recent high. So, but we'll take the highest of the row. Next level, that is correct. But currently, how it is trading? So, if 901 trades, at least there is a journey till 942, no? But that 901 is also not traded. It is traded, but सामने BDP था. Then 924 is also not traded. Yeah. Then 899 is also not traded. Here 909 is also not traded. Here 911.95 is traded post closing climbing by after reactive. Yeah. But तब तक तो सामने ही जहाँ से where pricing started falling, it was facing 929. Right. But sir, suppose जैसे there was one case study TVS Motors का that even though the follow-up buying justified was not there. Suppose, let us go with case studies. So no, I'm just asking a normal query. So even if the global series सर ऐसा है जैसे justified में buying नहीं आती, follow-up buying नहीं आती, and even though reactive का PCS trades and चलो WDP also trades, but we can still think ना कि सर जब तक किलो intact है तब तक तो buying ही करनी है. Why sell even if WDP trades? अगर चलो justified में फिर भी follow-up buying नहीं है. Same thing I explained you in Bharti Airtel now. Good above series justifies, and in same day if stop and use to sell occurs, and that stop and use to sell in action comes, that can offer 5% on selling side. Otherwise, we need not sell. We should not sell. No, I'm asking about reactive. Reactive जिस दिन हुआ उस दिन का even if good above series, no need to sell at all in good above series justification. क्योंकि बहुत सारा उसमें है ना ध्यान देना पड़ता है बाइंग के सीरीज में. या तो फिर जब केस स्टडी आता है उस समय समझ के करो. मैंने फिर से तीसरी बार कह रहा हूँ, जिस समय गुड अबव सीरीज जस्टिफाई हुआ तो दैट इज द फाउंडर, वहां से बिगिनिंग हुई और वहीं पे अगर स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ हो और वो एक्शन में आया हो तो ही बेच सकते हैं, अदरवाइज नहीं बेचना चाहिए. ओके. या तो फिर और लेट अस स्टिल कीप इट सिंपल.
जस्टिफाइड गुड अबव सीरीज में सेलिंग की बात ही मत करो, या तो सेलिंग करना है तो उसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। राइट सर, ओके सर। तो सर रिएक्टिव में भी वी हैव टू जस्ट लुक फॉर बाइंग ओनली, जब तक कीरो इंटैक्ट है तब तक वी ओनली लुक फॉर बाइंग, नो सेलिंग आल्सो। बराबर है। ओके सर, बाइंग के स्क्रिप्ट में सेलिंग करना, सेलिंग के बाइंग स्क्रिप्ट में कभी बाइंग करना, कभी कभार मैं यहाँ पे कह देता हूँ, बट दैट विल लर्न आइदर व्हाइल मीटिंग इन पर्सन, और मैं एक बार थोड़ा हाथ में काम है उससे फ्री हो जाऊं तो उसके लिए स्पेशल वेबिनार रखेंगे, तो वहाँ पे मैसेज दे देंगे कि भाई ये ट्रिकी ट्रेड है, जिसको वेबिनार अटेंड करना हो और सीखना हो और सीखे। बस सीधा जो ट्रेड करने जाएगा उसको तकलीफ ही आएगी ट्रिकी ट्रेड में, उस वेबिनार के बाद भी। ओके सर, या ट्रेड्स एंड देन ओनली अप्लाई इट। यस, आई हैव लर्न कि गुड सीरीज में सेलिंग करनी नहीं है, व्हेन वी लर्न अलग से। ओके। एंड सर वन मोर केस स्टडी, going to take M&M from 2018. So 19 Feb 2018. So your week below series justified happened, and we will only project 5% when the PCDS trades on the lower side, right? So on 22nd, it came up to the PCDS and stop and reverse to buy happened. So your so what is the thinking we have to make when it comes to the PCDS doesn't trade it and stop and reverse to? अभी बोलो Sir, what I thought was it came near PCDS and बात करो इससे वीक बेलो सीरीज जस्टिफाई हुआ, पीसीडीएस तक आया और पीसीडीएस ट्रेड नहीं कर पाया और स्टॉप एंड टू बाय हो गया, तो उसका इरादा क्या है? तो उसका इरादा था, मैंने जब लिखा था इट वांट्स टू ट्रेड द पीसीआर। कौन सा पीसीआर? तो उसी दिन का 7:30। आई डोंट नो, जो फिर ये नहीं सिखा सकते हैं, बहुत मुश्किल है। बहुत सिंपल सी बात है, जस्टिफाइड है, सेलिंग के घर में है, पीसीडीएस अलाउ नहीं कर रहा है और वहां से स्टॉप एंड टू बाय हो रहा है, मतलब उसको अभी के लिए नहीं टूटना है, राइट? Prices stopped declining and started rising. Yeah. So now two questions: when it will continue to decline further? When 696.95 trades on lower side. When it will continue to rise further, even if he wants to rise? When this stop and even this big below series justification, it wants to nullify. Yeah. Then which price should I take? कौन सा ऐसा भाव है? ये सब थॉट प्रोसेस में आ गया यार। तो ये जस्टिफाइड का बीडीपी होने के बाद में, ये जस्टिफाई होने के बाद में सब बीडीपी ना, हाई बीडीपी जितने भी हाईएस्ट भाव दिखता है ना 19 तारीख से लेकर 22 तारीख, वो ट्रेड करेगा तो ही नया बढ़ेगा। 749.30 इज द हाईएस्ट प्राइस। हाई देखना है, बीडीपी देखना है, पीसीआर देखना है या पीसीसी भी देखना है, 749.30 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा। तो तब तक जब तक 749.30 ट्रेड नहीं करता तब तक सेलिंग का व्यू इंटैक्ट है। इंटैक्ट है, ओके। एंड फिर जब भी ये 696 बाउंस बैक है, यहाँ से बाउंस बैक है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है, ये रिट्रेसमेंट है, ये पुल बैक है, ये बैक बुल ट्रैप है, ऐसा सब बोल सकते हैं। एंड विल सी क्या हुआ। 742 तक आया, 749.30 ट्रेड नहीं किया और वहां से एक
PCS 727 अगर ट्रेड कर ले या एक PCDS 724 यहाँ से ट्रेड कर ले तो 696 की जर्नी बनेगी। दैट इज ऑल्सो नॉट हैपनिंग। 749 भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है, PCDS भी ट्रेड नहीं कर पा रहा है। ये PCDS 732 अब यहाँ पे ट्रेड कर लिए, तो उसने कंफर्म कर दिया कि 749 मुझे ट्रेड नहीं करना है ऊपर की तरफ। राइट। और कहाँ जाना है? 696 जाना है, वो भी तोड़ना है, वो भी तोड़ना है। या एंड हियर जब ये PCDS इसने ट्रेड किया तो यहाँ पे स्टॉप एंड गिव टू बाय का सपोर्ट था, तो जिस 719.90 आल्सो ट्रेड करेगा तो ये व्यू और कंफर्म होगा। ये 719 यहाँ पे ट्रेड किया, 749 आपका रेजिस्टेंस हो गया अभी। 740 वापस बार बार कितना डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है 749 तक, 749 तक। So yeah, that is beautiful. That I saw. 700 तक, 749 तक, 749 तक, 749, 749, 752 ट्रेड ही नहीं कर रहा है। तो जिस दिन उसने ट्रेड कर लिया तो फिर बढ़ गया। उसके बाद में तो ये अकरेंसी सब बदल गए, वुडबू सीरीज अकर हो गया ना, इनएक्टिव हो गया। बट यहाँ पे ऐसा सोचना चाहिए कि ये जर्नी जो है 696 से 749 के बीच में ट्रैप हो गई। इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना चाहिए, कीप इट सिंपल यार। जैसे मैं खाली तो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई पीछे स्टडी कर रहा था, तो आई वाज लाइक कि PCDS के पास आके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होना नहीं टूटना है बस उसको। PCDS तक आके PCDS नहीं ट्रेड कर रहा है मतलब उसको नहीं टूटना है। 696 ट्रेड करेगा तो ही नया टूटेगा। दिस इज एक उसने बाउंड्री लाइन बना दी उसकी, ये जस्टिफाई होकर 696 95 ट्रेड करेगा तो ही टूटेगा, 749 ट्रेड करेगा तो ही बढ़ेगा, बाकी दोनों भाव के बीच में रहेगा। 742, 743, 741, 752 कितना रहा तब तक जो बड़ा वो सीरीज अक्कर हो गया। ठीक है। यस सर, या ओके, थैंक यू। ये सब इतना डीप में जाके स्टडी करना सब ठीक है, बट नो हाथ में जो पोजीशन रहती है ना तो इस तरह से सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है। एंड मैं फिर से कहता हूँ, इन्वेस्टमेंट करते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस कर रहे हैं, पैसा रोक के काम कर रहे हैं, तो यहाँ वहाँ की 8-10 बातें सब सोच के करना चाहिए। और जब हम 5% की ट्रेडिंग के लिए काम कर रहे हैं और बहुत इजीली 3 ट्रेड अपने पास RAR में है, 2 ट्रेड ट्रेंडिंग लेग अलोंग विद स्टॉप एंड यूज टू बाय सेल में है, उसको ही खाली देखना चाहिए कि जो स्टॉप एंड यूज ग्रीन वैलिड बाई हो, स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन हुआ तो क्या 5% मिला, रिवर्सल बाई हुआ तो क्या 5% मिला। इतना ही स्टडी करना चाहिए और इतना ही दिमाग में रखना चाहिए। ये स्टडी इसलिए करना चाहिए ताकि वो टेम्परामेंट बन जाए कि हाँ दिया, हाँ दिया, हाँ दिया, हाँ दिया। तो हो सकता है कि कभी कभी नहीं भी दिया होगा, ऐसा भी केस स्टडी मिलेगा। व्हेन यू आर कमिंग टू द एक्चुअल ट्रेडिंग एंड कभी कभार अगर नहीं भी मिला 5% तो भी आप बोलोगे कि नहीं यार ओवरऑल तो ये देता ही है, लेट मी कंटिन्यू टू ट्रेड कंसिस्टेंटली। वो कंसिस्टेंसी का टेम्परामेंट रखने के लिए हम हिस्टोरिकली स्टडी भी करते हैं और बैक टेस्टिंग भी हो जाता है, दोनों हो गया, बैक टेस्टिंग भी हो गया और मेंटली हम टेम्परामेंट भी बना लिए। और टेम्परामेंट कौन सा बनाना है? irrespective of outcome of 1 or 2 trades, we'll continue to trade at least minimum 10 trades। 10 ट्रेड एक स्ट्रेटेजी से करेंगे ऑन बाई साइड, 10 ट्रेड ऑन सेल साइड, तो समझ में आ जाएगा कि हमको जमा कि नहीं जमा। हर बात का जवाब हो सकता है, हर बात के ऊपर डिस्कशन हो सकता है, हर बात के लिए थॉट प्रोसेस हो सकती है, बट यू नो हर बात में, हर समझ में ट्रेड नहीं होता है। यही अगर 696 अगर ये ट्रेड कर लेते तो बहुत टूट जाता, और यही अगर 749 ट्रेड कर लेता है जहां से उसने टूटना चालू हुआ था वहीं से वो बढ़ गया, तो अच्छा बढ़ा भी। अब इतना कहाँ कैसे सोचेंगे और करेंगे ना। विवेक हाँ बोलो। हेलो। यस।
सर गोदरेज सीपी हिस्टोरिकल डेटा पे देखना था। जनवरी 2020। कहाँ से स्टडी किया आपने इसको? मैंने इसको 1 जन से स्टडी किया था सर। क्यों? हिस्टोरिकल स्टडी इसको बोलते हैं कि कम से कम 2018 से अपने डेटा अवेलेबल है, तो 2018 से करोगे तो कुछ अकरेंस मिलेंगे। मैंने काफी सारी स्क्रिप्ट थी, सब में 1 जन से किया था, तो इसके लिए फिर 2018 से भी कर लूंगा सर। हाँ, दैट इज द ओनली वे ऑफ स्टडीइंग। हाँ बोलो सर। ये ट्रेंडिंग लेग विथ SNR2 बाय सेल सेटअप कौन सी डेट में आऊँ? अभी 10th फरवरी में आई है सर। एक बार मेरी रीडिंग करेक्ट है कि नहीं, खाली मतलब वो वैलिडेट करना था। 10 फरवरी। इसमें वैलिड सेल अकर हुआ है, SNR2 बाय हुआ है, तो इसमें रीडिंग ऐसे ही होगी ना कि ये 624 के नीचे जाएगा तो टूटेगा, 5% देगा, और 658 के ऊपर जाएगा तो 5% मिलेगा, अगर समझिए रिवर्सल होता है तो। आज का मैसेज पढ़ोगे? 3-3:30 बजे भेजा था ड्यूरिंग मार्केट ओवर्स, या कब भेजा था? बहुत बार भेजा है मैंने ये मैसेज, लेकिन आज रिपीट कर किया है मैंने टुडेस मैसेज। हाँ जी, प्लीज नोट वी हैव नॉट लर्न सिस्टम। यस सर। क्या लिखा उसमें? 3 trades buying in FC and 2 trades buying in RC. Buying in FC, ICFC active support, re-entry into RC, re-begin to buy, and SNR to buy in FC. नोट में जाओ, लास्ट पैराग्राफ में जाओ, प्लीज नोट। We have not learned how to sell. We have not learned to sell during dark green period, irrespective of SNR to buy or sell. Similarly, we have not learned to buy during dark red period, irrespective of SNR to buy and sell. Are you answered? तो ट्रेंडिंग लेग के हिसाब से जैसे बोल रहा है, बस खाली इतना ही दिखना है ना उसमें, मतलब उसमें खाली एक ही फिगर अपने को ट्रैक करना है। वैलिड सेल है तो सिर्फ सेलिंग में ध्यान रखो, वैलिड बाय है तो सिर्फ बाइंग में ध्यान रखो। ठीक है सर, ठीक है। वैलिड सेल में भी बाइंग कर सकते हैं जी, बट वो सब ट्रिकी है। अपन सिंपल करें ना। ओके। सिंपल 25-30 ट्रेड कर लो, 50 ट्रेड कर लो, फिर आ जाएंगे। तो फिर वैलिड सेल में भी कैसे बाय करना, वैलिड बाय में भी कैसे सेल करना। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। नो सर, अभी के लिए इतना ही, मैं बाद में फिर आपसे पूछूंगा। हाँ तरुण बोलो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। मेरे को ना एक आई जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड वन थिंग अबाउट MGL सर। मेरे को जस्ट टेल मी इफ आई एम राइट और रॉन्ग, द वे वी वर सपोज्ड टू रीड, जो जिस तरीके से सर आपने सिखाया था। आगे सर। हाँ सर, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे जहाँ पे इसका वीक वेलोसिटी अकर हुआ है और जस्टिफाई हुआ है। ओके सर, ये वीक वेलोसिटी अकर हुआ है 6 तारीख को विद अ स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय। ऐसे नहीं होता है। यहाँ से जाओ, यहाँ से शुरू हुई है गाड़ी। कहाँ से शुरू हुआ है ये? 24 फरवरी से। हाँ 24 फरवरी से।
पूरा इसका विजिट करो उसको, तो उसकी पूरी एक पूरी स्क्रिप्ट को नहीं समझे तो कोई बात नहीं, एक स्क्रिप्ट की रिसेंट चाल तो समझे। विजिट करो जो भी है सब ट्रेड करके ही चल रहा है, एज इन इसका इफ यू सी द केसेस। हेलो हेलो सर। बोलो बोलो सर, ये पहले से ही उतना ही चल रहा था, मतलब ये वीक वेलोसिटी जस्टिफाई होके चल रहा था। हेलो सर, आपको आवाज आ रहा है ना मेरा? सुन रहा हूँ, बोलो। हाँ सर। हाँ सर, ये पहले से ही वीक वेलोसिटी जस्टिफाई होके चल रहा था, उसके बाद उसने इसका पीसीएस भी ट्रेड किया एंड देन अगेन न्यू सीरीज ऑफ सेलिंग बिगेन इफ यू कीप कमिंग डाउन। ओके, एंड सर अगर लेटेस्ट में अगर देखेंगे तो सर ये करंटली वीक वेलोसिटी इनएक्टिव होके चल रहा था। और द क्वेरी व्हाट आई हैड फॉर दिस पीरियड। कौन सी तारीख में आऊँ मैं? विच डेट यू आर रेफरिंग टू? सर नीचे नीचे लेटेस्ट में हाँ सर, ये बस ऊपर थोड़ा सा सर, इसके अंदर ना सर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे प्लीज, हल्का सा ऊपर नीचे मत करो यार, डेट बोलो मुझे, कौन सी डेट में हाँ जाऊँ? सर, ये 4th और 5th ऑफ मई जिस दिन अकर हुआ है वीक वेलोसिटी अकर हुई है। हाँ 6th ऑफ मई। ओके सर, ये 6th ऑफ मई को वीक वेलोसिटी अकर होके स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय हुआ है, इसका पीसीसी भी 950 है। ओके सर, नेक्स्ट डे ही ये वीक वेलोसिटी जस्टिफाई होती है। ओके, इसका पीसीडीएस 862 है जो ये ट्रेड नहीं करता है। ओके, सो आइडली सर एज ऑफ नाउ अगर जब तक ये 862 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है तब तक ये नहीं टूटेगा। ओके, और सर इसका पीसीसीबी 950 है जो 6 तारीख का है। ओके, सो ये पीसीसीबी तक सर नीचे आता है अराउंड कम लिटिल डाउन ऑन 14th ऑफ मई इट कम्स टू 950 और वहीं से वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल होता है। ऐसा नहीं है जस्टिफिकेशन, अभी मैंने कौन सी स्क्रीन में उसको समझाया था, माइंड ट्री में। हाँ माइंड ट्री में वीक वेलोसिटी जस्टिफाई हुआ ना, हाँ हाँ, तो उसका पीसीडीएस ट्रेड नहीं किया है, नहीं तब किया तक बराबर सर। उसका बीडीपी तक, हाई तक, पीसीआर तक कहीं ना कहीं बाउंस बैक होता रहेगा। हाँ, तो ये जो सर वीक हुआ है वेलोसिटी जस्टिफाइड 939 तक आया है। बराबर वहीं तक ही आया है। परफेक्ट। ओके, तो सर अच्छा, तो यू आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द वीक बिलो सीरीज अकर का जो पीसीसी है वो वहां तक मैं नहीं बोलूंगा, बट आई कैन से दैट 7th मई का जो बीडीपी है वहां तक आया। ओके, और वहीं से सर स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल हुआ हाँ 14th मई। तो ये 855 ट्रेड कर लेगा, ऐसा समझ में आया। हाँ लेकिन सर ऐसा अगर अभी समझ अच्छा के आप करो हाँ कि जब तक दैट्स व्हाट आई पीसीडीएस वांट ट्रेड नहीं करता है सर। पीसीडीएस इसका 860 862.95। ओके, तो जब तक 862 आइडली 862.95 और 855 उसका जो भी लोअर साइड ट्रेड करेगा तो वहां से तो 5% देगा ही देगा। बट सर अभी नहीं सर, सर इसमें ऐसा ही लग रहा है कि ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन ही हो रहा है, मतलब सर लिटरली फ्रॉम 863 से वापस 940 तक आया और वहीं से वापस रिवर्स हुआ। तो सर इसको मतलब वी कैन से दैट अगर ये 866 और सॉरी 862 या 855 लोअर साइड ट्रेड नहीं करता है, दैट मीन्स our first profit booking levels should be 855 860 approximately, and then once it trades 855 on the lower side then we can trade again, we can square और सर जैसे आप बोल रहे थे जैसे ये डिस्ट्रीब्यूशन होके हो रहा है, so we can always say that कि 855 तोड़ देगा। ये समझाना थोड़ा मुश्किल है, मैं कोशिश करता हूँ ये बताने की कब 855 ट्रेड कर लेगा और तब प्रॉफिट बुकिंग लेवल काम करेगा ये। हाँ सर बताना प्लीज। एक बार में समझ जाना, समझ गए तो ठीक है, बट लेट अस नॉट extend this discussion in coming webinars also. No issues. Big below series justified. PCDS is not traded. So any rise in price until 939 is not traded on higher side, is a pullback. Yes. It is a distribution. Yes. And from there, two way it can approach 855. And we can project whether 855 will trade or not
मच मोर इन एडवांस। जो बहुत बार मैं कहता हूँ ये तो तोड़ ही देगा, ये तो बढ़ ही जाएगा, इतना तो हो ही जाएगा। Exactly. I'm trying to explain the logic behind that, if I can explain. Stop and used to sell होकर stop and used to sell in action आता है, Okay. या तो stop and used to buy होकर stop and used to buy का सपोर्ट लोअर से ट्रेड करना, यानी कि रिवर्सल सेल होता है। मतलब स्टॉप एंड यूज टू सेल इन एक्शन होकर या रिवर्सल सेल होकर अगर सेलिंग आती है तो हम कहेंगे कॉन्फिडेंस के साथ कि ये रिसेंट लो या तो जहां से टूटना बंद हुआ था बढ़ना चालू हुआ था वो तो ट्रेड कर ही लेगा। अनदर वे इज सिंपल वे, वो पीसीबीएस वगैरह ट्रेड करके धीरे धीरे आएगा नीचे, तो 855 विल एक्ट एज ए प्रॉफिट बुकिंग लेवल। ओके, अच्छा, ओके, अंडरस्टूड। सो सर इसके केस में 14th का एक पीसीडीएस है 886 का और आज का है 864। तो आज सॉरी आज का है 882 का। सो आइडली व्हाटएवर 882 अगर तोड़ेगा तो कल परसों अगर व्हेनेवर इट ट्रेड्स ऑन द लोअर साइड वी कैन से दैट 855 तोड़ देगा। 886 लोअर से ट्रेड किया होगा 18 मई को। ओके, हाँ ट्रेड कर लिया ना, कर लिया, यस लेकिन से सेफली कि 855 तो ट्रेड कर ही लेगा। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में ट्रेड कर लेगा। I'm just asking for the, I mean because सर अभी जैसे ये ट्रेड नया है हमारे, तो because पहले what we used to do, because it is inactive, reactive and बेचो। Now you have expanded with PCS, PCDS and everything, तो सर थोड़ा logically समझने को it takes like at least for a couple of days probably। ठीक है सर, ये तो मेरे को समझ गया, आपका बात समझ गया मेरे को। अगर एनी स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल ट्रेड्स ऑन अ लोअर साइड, उसका पीसीडीएस या उसका डब्ल्यूडीपी या उसका रिसेंट लो ट्रेड्स ऑन अ लोअर साइड, वी कैन से दैट ये 850 जो रिसेंट लो है वो तोड़ देगा और वहां से 5% और देगा। बिकॉज सर आपने ये वो आपके सेल में दिया है, आपने उसका टारगेट कुछ आपने 760 770 कुछ तो दिया है, वी रिमेंबर, एंड वन ऑफ द बेस्ट। और 5% है ना, कभी कभार जैसे मैंने एलआईसी हाउसिंग में कह दिया था 5% नहीं 10% देगा, बर्जर पेंट में कह दिया था, डाबर में कह दिया था, वो सब वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन होके टूटता है ना तो इट गिव्स इवन मोर। यस, आप हमेशा बोलते हो सर पढ़ के टूटता है, टूट के बढ़ता है वो बहुत बढ़ता है सेलिंग में, जो बढ़ के टूटता है वो ज्यादा टूटता है। आई नो यू नो। ठीक है सर, मेरे को यही समझ रहा था इसके अंदर, बिकॉज आई कुड सी दैट जर्नी टिल बीडीपी एंड देन आई वाज क्वाइट सरप्राइज्ड, मतलब वहीं से स्टॉप एंड रिवर्स सेल हुआ, तो ये एक बार के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ही लग रहा था, तो मैं सर आपसे एक बार कंफर्म कर लेता हूं। और ये स्टॉप एंड यूज टू सेल है, स्टॉप एंड यूज टू सेल इसलिए इसका टूटना भी बहुत इजी हो गया। पहले 882 ट्रेड करेगा, फिर ये जब रिएक्टिव हुआ उसका पीसीडीएस जो है वो 864 उसको ट्रेड करना होगा, तो 855 को उड़ा ही देगा आराम से। 854 को उड़ा ही देगा, यस ऑलमोस्ट उसका वही रहेगा, 855 लेवल ही रहेगा। ठीक है सर, नो इश्यूज, थैंक यू सर, थैंक यू सर। स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना, इसके लिए और स्टॉप एंड यूज टू सेल अभी इन एक्शन आ जाना। इन एक्शन कैसे आएगा? बाय ट्रेडिंग 872 ऑन लोअर साइड, 913 के नीचे है तभी, तब तक वीकनेस ही है। Any rising price is selling opportunity with stop loss of 913 according to RAR के घर में। चलो मुझे भी कुछ कहना है, मुझे शुरू में ही कहना था बट शुरू में पार्टिसिपेशन कम था। गुड इवनिंग फर्स्ट 10 मिनट्स। बोलो। गुड इवनिंग। यस दलजीत बोलिए। आई जस्ट ओपन TCS। Basically, this is a general query that in running market, when you say that to carry forward a trade over next day, we should see whether it is closing with PCR or PCS. So in running market, how do we come to know whether this is a PCR or PCS? When it is trading with fresh support in RC.
That Okay. only, that is the candidate for closing with post-closing support. Okay. And stop and US to sell should not occur. We are saying three things. One is press support in RC, मतलब upper band trade करना. Right. Second is along with BDP, मतलब उस प्लान का BDP जो है उसका next level भी trade करना. Now third thing is we have to believe that this will close with post-closing support. But during the day अगर ये stop and US to sell occurs, Okay. means it doesn't want to trade with, it doesn't want to close with post-closing support. Okay. At any point of time, SNR to sell occurs, then PCS is not possible. Right? Yes, in this also, if I can explain, Yes. if this stop and US to sell is above BDP, then it is a correction sell only, no? Oh, yes. Then we did not bother. We should consider this stop and US to sell as correction sell only. Okay. And there is two approach जो हमने good above series justified की notes में भी दिया है. It is an optional to exit the position. It is an optional. Okay. क्योंकि ultimately buying के judgment में अगर है तो यहाँ पे buying का कोई judgment नहीं है according to RAR. लेकिन if it is in trading with good above series justified or good above series reactive, or it is trading with dark green, and any stop and US to sell occurs, it is nothing but correction sell, which may come up to PCS, or it may come up to WDP, or it may come up to low. जैसे हम लाइव एग्जांपल अभी भारती टेली की बात कर ले, भारती एयरटेल की, तो वो ऑप्शनल है, वो डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्ट्रेटेजी अडोप्ट करते हो. स्टॉप एंड यूज सेल में निकल भी जाओ, या तो फिर इफ यू आर एग्जिटिंग तो WDP पर वापस ले भी लो. जैसे गुड ओवर सीरीज ये जस्टिफाई होके चल रहा है काफी टाइम से, राइट? Right. जस्टिफाइड ओनली. और इसका जो PCR 545 वगैरह सब ट्रेड कर लिया था, तो फॉलो बाइंग आल्सो हैज कम वन. और ये सब होने के बाद में जब ये गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ, Right. तो स्ट्रेटेजी एक तो स्टॉप एंड यूज टू सेल होते ही निकल जाओ, बट वापस तो जो गुड ओवर सीरीज जस्टिफाइड का लो WDP ये मालूम है कि 535 है, 530 है, वहां पे वापस लेना आना चाहिए. Right. और या फिर इसको इग्नोर. अरे वहां पे ले भी लिया तो वापस ये भी सोचना आना चाहिए कि 565 60 से बढ़ना बंद हुआ था, टूटना चालू हुआ था. प्राइसेस स्टॉप राइजिंग and started falling from 565 60. So first journey will be 565 60, and only when that trades on higher side it will rise further. Right. Correct, no? Yes. दो में से कोई भी एक trade, but only thing is whenever I'm sharing two strategies, no, I'm afraid of only one thing. Mix नहीं हो The जाए. moment I'm applying any one of that strategy, and if it doesn't work, no, in one transaction, immediately we'll shift to the second strategy, and like that, no, we'll keep shifting from first strategy to second strategy, second strategy to first strategy. And whenever we are adopting any strategy, no, that will not work only at that time when we have adopted, when we have traded. तो दो में से कोई भी है क्या? चलो ठीक है, निकल गए. अब 565 60 हायर से ट्रेड करेगा, 569 75 हायर से ट्रेड करेगा, तो ही बाइंग करूंगा. दिस शुड बी वन स्ट्रेटेजी. Correct. सेकंड स्ट्रेटेजी ठीक है यार, हमेशा यार ये बाइंग का जजमेंट है, फॉलो बाइंग होके चल ही रहा है. इट इज इन बुल्स हाउस ओनली. इफ यू कैन कैच दिस पॉइंट, इट इज इन बुल्स हाउस ओनली, एंड स्टॉप एंड यूज टू सेल इज नथिंग बट करेक्शन सेल. अभी जस्टिफाइड पीरियड का जो करेक्शन सेल था, जो हम वेबिनार में बात भी किए थे एक दो बार, तो 530 हाफ 534 95 है, तो वी शुड बाय देयर विद स्टॉप लॉस ऑफ 530. No, I agree. Yes. Actually, और I एक और get the बात advantage. अगर मैं कह सकूं और आपको समझा सकूं, जिस समय भी करेक्शन सेल आता है ना, Yes. बाइंग के जजमेंट में जब भी करेक्शन सेल आता है ना,
वो ऐसा टूट के बंद होता है, क्लोज इज नियर टू लो ओनली। क्राउड यही सोचता है कि कल तो है ना 5% नीचे ही खुलेगा, 10% नीचे ही खुलेगा। इतनी सेलिंग लास्ट 1 आवर में सेलिंग 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 दिखाते हैं, और न्यू लो न्यू लो न्यू लो न्यू लो बन के बंद होता है। अगर आप 14 मई का आवरली हाई लो निकाल के देखेंगे, ये सब बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। बट इफ वी कैन, इट इज ऑल आर्ट ऑफ नो रीडिंग द मार्केट, लिसनिंग टू द मार्केट, थिंकिंग एंड टॉकिंग विद द मार्केट। मैं भारतीय एयरटेल के साथ अगर 14 मई को हूँ और ये देखूं तो इतना मस्त नया 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 लो बनाएगा और 1-1.5 घंटे तक वहीं खड़ा रहेगा। लेकिन हम देखते हैं कि यार ये 530 तो तोड़ नहीं रहा है, 535 के नीचे भी नहीं जा रहा है। ये तो पूरा करेक्शन सेल है, डिस्ट्रीब्यूशन है, अक्यूमुलेशन है। यहाँ पे लो भी ये WDP था, 100% भी 533.40 था। थोड़ा उस समय इसके साथ है ना 5 मिनट की कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, मीटिंग करनी चाहिए, गुफ्तगू करनी चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, बट जनरली यूजुअली ट्रेडर्स है ना चालू बाजार में 10 लोगों से बात करते हैं भारतीय एयरटेल में क्या लगता है। 10 लोगों से बात करने में है ना कम से कम 3-3 मिनट बात किया तो भी 30 मिनट होती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे सिर्फ 3 मिनट दे दो, सिर्फ 3 मिनट एवरी स्क्रिप्ट को। किसी को पूछने की जरूरत ही नहीं है, भारतीय एयरटेल खुद ही बोलेगा आपको कि मैं करेक्शन सेल में हूँ, मैं बुल के घर में हूँ, 530 के ऊपर मैं अच्छा हूँ, 565 ट्रेड करूंगा कि नहीं करूंगा ये नहीं मालूम, बट 530 ट्रेड नहीं करूंगा, एक बार 565 तक तो आऊंगा, इतना तो जवाब देगा। राइट, बराबर ना? यस, थैंक यू। मैं कोशिश कर रहा हूँ लास्ट 2 दिन से कहने की, कह सकूं तो, कि आपको है ना बाजार के साथ बात करना सीखना होगा। जितना मुझे क्वेश्चन पूछते हो ना, क्वेरी पूछते हो ना, एक बार कोशिश करो चालू बाजार में है ना भारतीय एयरटेल को ही है ना क्वेश्चन पूछना चालू करो। शायद ये थोड़ा अजीब सा लगेगा, आज जो मैं कह रहा हूँ वो शायद अजीब सा लगेगा, बट सारी दुनिया एक तरफ और भारतीय एयरटेल की जो मूवमेंट है वो एक तरफ, या कोई भी स्क्रिप्ट की मूवमेंट है वो एक तरफ। एक बार उसके साथ सिर्फ और सिर्फ मुझे मेरी ट्रेनिंग के ऊपर, मुझे आपके ऊपर इतना कॉन्फिडेंस है, इतना ट्रस्ट है मुझे कि आप अगर कल से शुरू कर दो कोई भी स्क्रिप्ट के साथ ड्यूरिंग मार्केट आवर्स बात करना, और एक स्क्रिप्ट के साथ सिर्फ एक ही बार मीटिंग है, ऐसा नहीं कि बार बार आप पूछते रहो भारतीय एयरटेल को क्या पूछ सकता है, क्योंकि बहुत बड़ी पर्सनालिटी है। तो 5 मिनट की अपॉइंटमेंट देगा वो आपको, 5 मिनट के लिए कॉन्फ्रेंस करो, 5 मिनट के लिए मीटिंग करो, 5 मिनट के लिए उसके साथ रहो। आपको जो फर्स्ट 5 मिनट्स में जो जवाब मिलेगा ना, मुझे मेरी ट्रेनिंग पे भरोसा है, इतने वेबिनार्स आपने अटेंड किया उसके ऊपर भरोसा है, सच कह रहा हूँ, नथिंग लाइक दैट। वो 10 दिन करो ना, 10 दिन के बाद में क्या कॉन्फिडेंस आता है तो यहाँ पे शेयर करो। दिस इज कॉल्ड, जो मैं बार बार फर्स्ट सेशन में लास्ट सालों से कह रहा हूँ कि देयर इज 4 वे टू अप्रोच द मार्केट। वन इज रेस्पेक्ट द मार्केट, सेकंड इज रीड द मार्केट, थर्ड इज लिसन टू द मार्केट, fourth is think and talk with the market. This is what we are doing. Reading record sheet summaries, this is what, no, respecting, reading, listening, thinking and talking. सिर्फ 5 मिनट, एनी स्क्रिप्ट, भले मेरा ट्रेड है उसमें नहीं है, बात करो उससे, लो। मैं यहाँ पे एक व्हाइट बोर्ड भी देने वाला हूँ कि भाई हर स्क्रिप्ट के लिए आपकी जो भी समझ है वो आप यहाँ पे हाथों हाथ लिख सकते हो। जब आपने जो भी सोचा हाथों हाथ वहाँ पे व्हाइट बोर्ड आएगा, यहाँ पे इसके ऊपर कहीं भी एक ऐसा बनेगा कोई मार्कर, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो व्हाइट बोर्ड खुल जाएगा। वेबिनार में भी मैंने जो कुछ भी कहा वो भी आप नोट कर सकते हो कि वेबिनार में इस तारीख को ये बात कही गई थी, और आपको 4 पार्टिसिपेंट भी कुछ कहते हैं तो वो भी लिख लो कि XYZ ने मुझे ये कहा था, और आपको जो समझ में आता है वो भी आप लिख लो, बस लिख लो। एक्चुअली ये ऐसा कोई व्हाइट बोर्ड देने की जरूरत ही नहीं है, लेकिन हमको क्या कंप्यूटर का ज्यादा समझ में आता है, वो हाथ में पेपर पेन लिख के वो डायरी समझ में नहीं आती है कि भारतीय एयरटेल की फाइल बनावे। दैट इज मोर बेटर कि भारतीय एयरटेल की हर स्क्रिप्ट की जो भी समझ में आता है वो फाइल बनाओ। बट तो ठीक है, अपने को अभी आजकल टाइम टेक्नोलॉजी का है तो नोटपैड ही समझ में आती है, तो यहाँ पे नोटपैड बन जाएगी। मुझे यहाँ पे नोटपैड बनाने की क्या जरूरत है, यहीं पे नोटपैड अवेलेबल है, यही लिख लिया करो।
ठीक है ना, लिखो, एक बार ही लिखो, बस एक बार ही बात करो, एक बार ही लिखो, दिन भर उसको पूछते रहना, दिन भर देखते रहना, दिन भर अगर आप कंफर्मेशन के लिए वेट करते हो, मतलब वी आर डूइंग समथिंग रॉन्ग। एनीवन एल्स? हाँ प्रदीप बोलो। हाँ सर। सर मेरा फेवरेट स्टॉक एसीसी। आपका फेवरेट है इसलिए वो है ना 1244 तक जंप करके आता है और 1107 नहीं तोड़ रहा है। जिस दिन आप इसको छोड़ दोगे ना, वो 1107 तोड़ के 1047 आ जाएगा। सर और भी एक दुख भरी कहानी बोलता हूँ। दुख भरी? यार भले ही बहुत दुखी हूँ मैं यार, ऐसा मत करो। नहीं, दैट्स अ गुड लर्निंग आल्सो फॉर मी। मैं इतने दिन से बोलो। उसको फॉलो कर रहा था। जिस दिन सर अलर्ट वाला कॉलम डालेंगे। यहाँ पे हमने बात करी थी, मुझे याद है। हाँ, 1244 yes. का नेक्स्ट लेवल कहाँ This is ट्रेड the किया है, क्यों 261। हाँ बना दिया? बिल्कुल, हाँ ठीक है, आरसी 261 वाला है वो। क्या करूँ, अलर्ट नहीं कॉलम सॉरी, खोलूं? नहीं चाहिए। हम्म, हाँ तो ठीक है। 1244 में यहाँ पे ट्रेड नहीं किया था। हाँ मैंने यस 1244 जो अपना रेजिस्टेंस लिखा हुआ भी है सेलिंग लिस्ट हाँ में। यस तो मैंने वो आरसी 261 पे स्क्वायर ऑफ कर दिया था, व्हिच इज आई मीन बैड डिसीजन। एनीवे उसके बाद से मैं हर बार ये जब भी रिट्रेस हो रहा था मैं ले रहा था। तो जैसे बिकॉज इट हैज टू कम डाउन। तो एक सेकंड, क्या बोल रहे हो आप? बाइंग की पोजीशन आपने 1244 में स्क्वायर ऑफ की थी या सेलिंग की पोजीशन 261.8 में स्क्वायर ऑफ की थी? क्या बोल क्या रहे हो? सेलिंग की पोजीशन मैंने square off- सेलिंग की पोजीशन 261.8 पे कैसे स्क्वायर ऑफ करने का क्या मतलब? हाँ सर, वही तो उसके बाद ही आपने क्योंकि 261 नेक्स्ट लेवल का 261 ट्रेड कर लिया, तो मुझे लगा कि ये सब भागेगा ऊपर, तो आई डिडंट नो हाउ टू ट्रेड इट। तो उस दिन मैंने आपसे वही बात किया था कि 261 ट्रेड कर लिया। नहीं एक तो सेकंड, आपकी 261.8 के पास पोजीशन बाइंग आती है, बढ़ते हुए आता है, तो बाइंग की पोजीशन क्या करते हैं? हाँ स्क्वायर प्रॉफिट बुक करते हैं, बाइंग की पोजीशन हाथ में हो तो क्या करते हैं? सेल करते हैं, स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर स्क्वायर ऑफ ऑफ और कर सेल देते में हैं। फर्क है यार। बाइंग की पोजीशन हम हाँ क्या करते हैं? स्क्वायर ऑफ करते हैं। स्क्वायर ऑफ करते हैं। फ्रेश बाइंग करते हैं क्या? नहीं मतलब कीप योरसेल्फ, जब भी कंफ्यूज होते हो ट्रेड स्क्वायर ऑफ करने के बाद में भी, खास करके लॉस में स्क्वायर ऑफ करने के बाद इस तरह से हड़बड़ी में, कीप योरसेल्फ इनटू 4 टाइप ऑफ ट्रेडर्स। मैंने बहुत बार कहा है, ये बार बार वेबिनार में नहीं समझा सकता हूँ कम टाइम में। या तो मेरे पास बाइंग की पोजीशन है, राइट, आई एम ए होल्डर ऑफ बाइंग पोजीशन, या तो मैं फ्रेश बायर हूँ, या तो मेरे पास सेलिंग की पोजीशन होल्ड की हुई है, या तो मुझे फ्रेश सेलिंग करनी है। कोई भी बायस ओपिनियन रखने के बजाय, चलो मैं किसी से बात कर रहा हूँ, ऐसा एक सिनेरियो क्रिएट करो कि आप किसी को एडवाइस कर रहे हो XYZ को, एक पिक्चर ऐसा क्रिएट करो कि अगर आपके पास बाइंग की पोजीशन है और कोई पूछे एसीसी में क्या करना चाहिए, तो आप क्या बोलोगे उस समय? होल्ड, मेरे पास बाइंग की पोजीशन होल्डिंग है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या जवाब दोगे आप उसको? स्क्वायर ऑफ करने के लिए बोलूंगा। अच्छा, कोई बोलेगा कि मुझे फ्रेश बाइंग करनी है, तो आप क्या बोलोगे? फ्रेश बाइंग करनी है? हाँ, तो फ्रेश बाइंग तो अभी तो है नहीं। करनी है तो बोलोगे आप कि ये जो आज का हाईएस्ट हाई है ना, 3.5 तक जो भी हाईएस्ट हाई बनता है उसको नेक्स्ट डे ट्रेड करने दो। उसका 1257 का नेक्स्ट लेवल हायर से ट्रेड करेगा ना, तो बाइंग करेंगे, अभी बाइंग नहीं है। दिस इज व्हाट विल आंसर टू फ्रेश बायर। अच्छा, कोई सेलिंग की पोजीशन होल्ड करके रखा है, तो उसको क्या जवाब दोगे आप? खास करके वो लॉस में हो तो क्या जवाब दोगे? यस तो आपने बोला था उस दिन ये 1257। छोड़ो यार, आप क्या बोलोगे? कोई आपको पूछता है 261.8 पे मार्केट चल रहा है,
आप उसको जो बाइंग की पोजीशन होल्ड करके रखा हुआ है उसको आप बोलोगे स्क्वायर ऑफ करेंगे। नहीं सर, साइकोलॉजी बोल सकते हैं। दिस इज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। बाइंग की पोजीशन है तो आप उसको क्या बोलोगे, स्क्वायर ऑफ करोगे। फ्रेश बाइंग के लिए आप बोलोगे कि आज का हाई आने वाले दिनों में ट्रेड करेगा तो देखेंगे। बिल्कुल। तीसरा, और जिसके जिसके हाथ पास में सेलिंग की पोजीशन है उसको आप क्या सलाह दोगे? उसको भी मैं बोलूंगा कि नेक्स्ट दिन का तक वेट करो, मतलब आज का जो हाईएस्ट हाई है वो अगर नेक्स्ट डे ट्रेड नहीं करे तो ट्रेड करे तो स्क्वायर ऑफ कर दो, नहीं करे तो होल्ड करो। ये बात हमने पीएफसी में भी की थी। बिल्कुल सर, उसी दिन मेरे से बात होने के बाद ही वो बात हुआ, तभी मैं समझ गया ये यही क्या बात करना है। पीएफसी में हुई थी हाँ सर। कि भाई स्क्वायर ऑफ करना है बाइंग की पोजीशन तो क्यों 261.8 पे स्क्वायर ऑफ करना, और वहीं से वापस वो 80 रुपये आ गया, 15% 20% टूट गया। और सेम डे हियर 14th में यस सर, सेम डे 261.8 पे सिर्फ 4 बात पूछनी है। चलो आप अपना ये कौन सा डे था यार, 14 मई को, नॉट दिस वन, कब आया था? 13 मई को आया था 261.8। 15th को आया था, 15th। हाँ यहाँ पे चलो आपके हाथ में एसीसी से आप इन्फ्लुएंस हो क्योंकि हाथ में माल था। अब पीएफसी से बात करो, बाइंग की पोजीशन है तो 261.8 की बात कर रहा हूँ, क्या बोलोगे किसी को आप? बाइंग की पोजीशन होल्ड किया है तो स्क्वायर ऑफ करना है। अच्छा, फ्रेश बाइंग करने को बोले तो क्या बोलोगे? ये जो आपका 92.2 उस दिन का हाई है उसको हाँ, ऊपर उसका अगर नेक्स्ट जाए टाइम जब भी हायर से ट्रेड करेगा तो बाइंग करेंगे। बिल्कुल। सेलिंग की पोजीशन है तो क्या बोलोगे? होल्ड की हुई पोजीशन। हाँ, सेलिंग का पोजीशन होल्ड किया हुआ है तो वही कहूंगा कि 92.2 जो आज का हाईएस्ट हाई है, तो वी हैव टू वेट टिल दैट पॉइंट। वो अगर ट्रेड कर लेता है देन वी विल स्क्वायर ऑफ। यस, और फ्रेश सेलिंग करनी है तो क्या बोलोगे? फ्रेश सेलिंग करना है तो मैं वो 92.2 के स्टॉप लॉस से सेलिंग कर सकता हूँ। नहीं ना, 3 बात का जवाब बराबर दिया, लास्ट पॉइंट का जवाब बराबर नहीं है। सर प्राइसेस आर राइजिंग, नो, बढ़ते हुए बाजारों में सेलिंग कैसे कर सकता हूँ? व्हेन आई विल सेल? व्हेन प्राइसेस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्ट फॉलिंग, नो? So when it will start rising and stop rising and start falling? एसएनएफ टू सेल होना है। ये लास्ट सेंटेंस पे रहना है। हाँ, हुआ है उस दिन एसीसी में। इसीलिए वहां लेके जा रहा हूँ। हाँ सर, उस दिन बात हुआ सर ये बात। स्टॉप एंड टू सेल हो गया इस दिन। हाँ। प्राइस स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। यस। ठीक है, अब आपकी क्वेरी पूछो। हाँ, मुझे तो है ना प्रदीप, 10 दिन तक रोज 5 स्क्रिप्ट से है ना इस तरह से बात करोगे। See, there is 2 way I have highlighted today. One is स्क्रिप्ट से डायरेक्ट बात करने की बात कही मैंने। दूसरी बात मैंने कही कि कोई ट्रेडर अगर आपको पूछता है, 4 तरह के ट्रेडर्स हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई ट्रेडर नहीं हो सकता है, तो चारों ट्रेडर को आप क्या एडवाइस करोगे? तो 10 दिन ये करके देखो, 10 दिन स्क्रिप्ट के साथ बात करो, 10 दिन कंटिन्यूअसली 5 स्क्रिप्ट के ऊपर ही प्रैक्टिस करो। उसके बाद में आपको है ना कब कैसे सूझ जाएगा ना मालूम भी नहीं पड़ेगा। एक्चुअली आई एम ट्राइंग टू गिव यू व्हाट आई एम हैविंग बट आई एम नॉट एबल टू गिव। मैंने सिस्टम तो दे दी बट इसके अलावा भी मैं काफी कुछ देना चाहता हूँ जो वेबिनार के थ्रू आप धीरे धीरे ले ही रहे हो। बट ये 2 बात मैं आपको न दे पाया हूँ ना आप लोग ले पाए हो। वन इज हैविंग मीटिंग, कॉन्फ्रेंस मीटिंग विद पर्टिकुलर स्क्रिप्ट ओनली वंस ए डे, ओनली वंस। अगर आप 2 बार 4 बार 5 बार कर रहे हो तो ये इतनी बड़ी पर्सनालिटी है कि आपको कोई 5 बार नहीं मिलेगा वो। एक ही बार, दिन में सिर्फ एक ही बार। और ये 4 टाइप के ट्रेडर को अगर आपको एडवाइस करनी है तो क्या एडवाइस करोगे? इतना सोचो, इतना करो। आप जिस लेवल पे भी हो, आई एम टेलिंग यू, कैसे कौन से वर्ड में कहूँ मालूम नहीं, आज आप जिस लेवल पे हो ना उस लेवल से 10 गुना आगे रहोगे, 20 गुना आगे रहोगे, 100 गुना आगे रहोगे। ठीक है ना? बोलो। सॉरी आई डिविएटेड। हाँ, 13th में आ गया मैं। हाँ,
तो उसके बाद से इसको उस दिन वेबिनार के बाद मुझे पता चल गया कि इसको नीचे ही आना है क्योंकि SNR2 सेल हो गया था। तो उसके बाद मैं हर राइज में जब भी ओपन होता था तो वो रिट्रेस हो रहा था तो मैं ले रहा था और उसी दिन क्लोज कर रहा था जब अगर PCDS ट्रेड ना करे तो उससे मैंने सॉरी मतलब स्क्वायर ऑफ कर रहा था, सेल कर रहा था मैं और डे एंड पे स्क्वायर ऑफ कर रहा था क्योंकि PCDS अगर ट्रेड नहीं करे तो ऐसे मेरा 2 दिन चला, मतलब बहुत अच्छा चला इन द सेंस हर रोज मैं 1200 के आसपास ले रहा था मतलब और उसके बाद वो 1170-75 के आसपास मैं सेल कर किया 2 दिन। तो थर्ड डे मैं एक्चुअली रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहा था बट उसने खुला वहां पे और ओपन हुआ और वो रिट्रेस हुआ ही नहीं, सीधा नीचे चला ही गया। तो मेरा क्वेरी ये है सर कि मेरा कहाँ पे गलती हो रहा है, मुझे ये जानना था कि मैं क्यों ये ट्रेड नहीं ले पा रहा हूँ। जैसे कि उस दिन इतना फॉल हुआ ये 18th को, एटीनथ में। आप ये कहना चाहते हो कि 14th मई को आपने बेचा हाँ और आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया। बिल्कुल 15th मई को भी आपने बेचा यस और आपने सेलिंग की पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर ली कर दिया। हाँ और 18th मई को आप बेच ही 18 नहीं में पाए। बेच ही नहीं पाया वो, मतलब क्योंकि मैं हर दिन मैं वेट करता था कि थोड़ा रिट्रेस हुआ मतलब थोड़ा बढ़े फिर मैं ले रहा था, एटलीस्ट RC में आए, RC चैनल पे फिर मैं ले रहा था या हम अपर बैंड पहले के तो पास। है ना 14th मई को क्यों बेच पाए उस पे आते हैं, उसी में से उसका जवाब मिल जाएगा। 14th मई को आप बेच पाए, कौन से भाव में बेचा? ऊपर ही बेचा होगा। हाँ ऊपर ही, वो 1210 के आसपास बेचा था क्योंकि वो SNR2 सेल हुआ था 1207 पे 1205 पे। और आपने तो मैं एंड ऑफ द डे में ले लिया। हाँ बिल्कुल फिर से स्क्वायर ऑफ कर दिया। ओके ठीक है। नेक्स्ट डे पे भी 14th सेम मई किया। को नहीं 14 देख रहे थे। 14th मई में आपने बेचा, WDP के ऊपर बेचा, बराबर है। हाँ बिल्कुल 15th में भी आपने बेचा, बिल्कुल ये तो मैंने 38 RC लेकिन 38 WDP के के पास। ऊपर ही बेचा। हाँ WDP के ऊपर ही बेचा। बराबर ना। हाँ बिल्कुल तो WDP के ऊपर था इसलिए बेचने का मौका भी मिला और स्क्वायर ऑफ करने का भी मौका मिला। अच्छा सर यहाँ पे क्वेरी है, ये आपने क्यों बोला? क्योंकि मैं तो सिर्फ RC मुझे नहीं मालूम यार, मैं क्यों बोला, रुको अभी जवाब मिल जाएगा। अच्छा ठीक है सर। 14th मई को आपने बेचा। नहीं बेच नहीं पाया मैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि मैं बेच नहीं पाया, और मैं ये कह रहा हूँ कि 14th मई बेच को नहीं आप क्यों बेच पाए। 14th मई हाँ को आप क्यों बेच पाए? क्योंकि WDP के ऊपर था और स्क्वायर ऑफ कर लिया। 15th मई को आप क्यों बेच पाए? क्योंकि WDP के ऊपर था, इसलिए आपको मौका मिला बेचने का और आपने स्क्वायर ऑफ कर लिया। मतलब हमेशा जब तक WDP के ऊपर है तब तक उसको रिट्रेसमेंट मिलता रहा, और आप ही ने कहा कि मैं रिट्रेसमेंट में बेचता रहा, राइट? दिस इज ऑल ट्रेडिंग साइकोलॉजी वी आर टॉकिंग। यस हाँ यस नाउ 18th मई को WDP ट्रेड कर लिया। हाँ तो अब रिट्रेसमेंट कहाँ से आएगा? ओह अच्छा ओके जब तक WDP के ऊपर है तब तक रिट्रेसमेंट देता रहा और आप बेचते रहे, और आपको आदत लग गई कि रिट्रेसमेंट में बेचूंगा। आपने एक माइंड सेट कर लिया हाँ कि रिट्रेसमेंट में रोज बेचूंगा, रोज ले लूंगा, रिट्रेसमेंट में रोज बेचूंगा, रोज ले लूंगा। लेकिन रिट्रेसमेंट आएगा कब तक? जब तक WDP के ऊपर है तब तक। जैसे ही WDP ट्रेड कर लिया तो उसने बेचने का मौका ही नहीं दिया। तो उस टाइम पे क्या करना है टू टेक द ट्रेड? आपको इससे बात करनी होगी कि ये 14th मई को 15th मई को ये हर भाव में ये क्या कर रहा था, एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन। रिट्रेसमेंट हो के टूट रहा था तो क्या हो रहा था? डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और जैसे WDP ट्रेड कर लिया तो क्या हुआ?
डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हुआ, खत्म हो गया, हाँ सेलिंग स्टार्ट हुआ फिर न्यू राउंड ऑफ। गॉट इट सर। सर फिर दो ही तो भाव है, बीडीपी डब्ल्यूडीपी। ये तो मैं जवाब दे पाया प्रदीप, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था कि आप क्यों बेच पाए और क्यों नहीं बेच पाए, ये मैं कैसे जवाब दे सकता हूँ ना। I have to go into your mind and think what you were thinking that time. It was actually and very crisp and nice answer I got. यही सोच रहे थे 14 तारीख 15 तारीख को? हाँ सर बिल्कुल वही सोच रहा था, और मैंने WDP बेचने को मिला तो हमने सोच लिया कि मुझे रोज रिट्रेसमेंट में बेचने को मिलेगा, रोज मैं नीचे ले लूंगा। ये सर मैं उस दिन भी माइंडसेट कर लिया। माइंडसेट मत करो, बाजार के साथ रहो। सर नेक्स्ट क्वेरी इसी में ही, तो उस दिन मैंने रिट्रेसमेंट नहीं मिला, सपोज वो उस दिन नहीं मिला, अगर क्योंकि WDP ट्रेड कर लिया तो क्यों नहीं WDP मिला? क्यों नहीं मिला? ICRC तो खुला था, आपको बेचने का मौका नहीं मिला। वो बीडीपी हाई बना के टूटा ना, ICRC खुल गई तो टूटा। ये ICRC तो है, ठीक है, अपने को बेचने का मौका नहीं मिला, वो बात अलग है, क्योंकि हम फर्स्ट 2-3-4 मिनट में काम नहीं करते हैं। बट रिट्रेसमेंट तो आया। हाँ स्क्रिप्ट ने अपना काम किया। और मैंने कुछ वेबिनार से बहुत पहले कहा है, सेलिंग के जजमेंट में बराबर हाई और बीडीपी एक ही हो और फिर WDP ट्रेड करे ना, तो हाउ इट बिहेव्स, इतना कुछ है ना आप फॉलो कर सकते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, ना मैं कर सकता हूँ, इतना इजी नहीं है। बट वो बीडीपी WDP को रेस्पेक्ट देना आता हो तो दिखना चाहिए, एकदम स्ट्राइक होना चाहिए, अरे यार हाई और बीडीपी दोनों एक ही है। ठीक है चलो छोड़ो, वो सब इजी नहीं है। हाँ बोलो, नेक्स्ट बोलो। सर उसमें अभी वो मैंने रिट्रेसमेंट में ले नहीं पाया, तो अगर ये ट्रेड को लेना था मुझे तो नेक्स्ट कब एंट्री करना था? और एक्चुअली मैं ऑब्वियसली लोअर बैंड। आप बोलो, मैं किसी और को अटेंड करके आता हूँ, आप सोच के बोलो मुझे अभी। सर मैं सोच के रखा है, मैं तो बोलो अभी। लोअर WDP को ट्रेड करना था और WDP ये लोअर बैंड के ऊपर है, तो लोअर बैंड ट्रेड करना था। तो लोअर बैंड अगर ट्रेड कर लेता है तो मेरे दिमाग में चल रहा था ये कि आगे सामने ही तो 100% है उसका। ऐसा नहीं है यार, एक ही सवाल पूछता हूँ, कहाँ नया कब टूटेगा? जहाँ से टूटना बंद हुआ था। न्यू राउंड ऑफ सेलिंग कब बिगिन होगी, कहाँ से होगी? फ्रॉम वेयर प्राइसेस स्टॉप फॉलोइंग स्टार्टेड राइजिंग। बुलबैक कहाँ से आया था? ये पुलबैक ही था ना 1257 का। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहाँ से पुलबैक आया था, कौन से भाव से आया था, ये सोच के रखो, मैं किसी और से मिल के आता हूँ। ठीक है सर, सोचता हूँ। अभी जवाब चाहिए मुझे, मैं वापस आऊंगा 2 मिनट में। Anyone else? हाँ कमलेश भाई। जय श्री कृष्ण सर। जय श्री कृष्ण सर, हम क्वेरी बैंक निफ्टी में છે પણ પહેલા નિફ્ટી માં પૂછી લો। वीक बिलो सीरीज अकर થઈ હોય, निफ्टी में वीक बिलो सीरीज अकर हुआ है तो अभी भी गुड अबव जस्टिफाई का किलो का इंपॉर्टेंस तो है ही ना। ये फिल्म देखते हैं। वीक बिलो सीरीज अकर हुआ है तो गुड अबव सीरीज का जो ये जस्टिफाइड का जो किलो है 8909, इसका इंपॉर्टेंस है कि नहीं ये पूछ रही हूँ जी। यहाँ पे 8909 देख सकते हैं, ट्रेड किया कि नहीं किया लोअर साइड। 8909 का नेक्स्ट लेवल 8708 था,
और यहाँ पे जर्नी भी ATR की कंप्लीट हो गई थी, जैसी लिखा हुआ आ रहा है इसके, और 261.8 भी आ गया था। तो यहाँ पे किलो तक आया है, किलो ट्रेड नहीं किया है। मैं कोशिश करता हूँ सीधा जवाब देने के बजाय, आज मूड में हूँ कि लॉजिकली समझा के जवाब दूं। जी सर। बाइंग के जजमेंट में गुडबो सीरीज जस्टिफाई हुई है, हालांकि लाइट ग्रीन था, नॉन ट्रेंडिंग था, लेकिन वीक बिलो सीरीज अकर हुआ है। मतलब करंट वैलिड सेल ने प्रीवियस वैलिड सेल का लोएस्ट लो लोअर साइड ट्रेड कर लिया, 9043 ट्रेड कर लिया ऑन लोअर साइड, इसलिए वीक बिलो सीरीज अकर हुई जी। मतलब प्राइसेस जो स्टॉप राइजिंग एंड स्टार्टेड फॉलिंग। जी। on 18th May. Now, when prices will continue to decline further, when 8806 trades on lower side, तो वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होगा। बट यहाँ पे हम PCBS ये वो सब ध्यान में रखते हैं, तो 8708 लोअर साइड ट्रेड करता है तो ही प्राइसेस विल कंटिन्यू टू डिक्लाइन फर्दर, तो ही वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होगी। अदरवाइज दिस माइट बी ए बैड ट्रैप, this might be a accumulation, and this is an accumulation. ऐसा कंफर्म कब होगा? Prices are declining, but it will continue to decline further when 8806 trades on lower side. 8806 trade किया तो 8708 आएगा, and when 8708 really trades on lower side, तो ये कंफर्म टूटना चालू हुआ, फिर तो किलो ये वो सब टूट गया। भाव जो टूटना चालू हुआ है, कंटिन्यू कब होगा? जब 8806 और 8708 लोअर साइड ट्रेड करेगा। अच्छा, ये व्यू कि भाई एक्यूमुलेशन था, ये कंफर्म कब होगा? Once PCR और BDP trade higher side, PCR ट्रेड करेगा 8982, तो 9219 की जर्नी होगी, दैट वी नो। और 9219.50 ट्रेड कर लिया, मतलब प्राइसेस विल स्टॉप फॉलिंग, स्टार्टेड राइजिंग, उतना बंद हुआ, बढ़ना चालू हुआ जी। तो कल ये मालूम पड़ जाएगा, दो में से एक। ये वीक बिलो का जवाब है, हालांकि ये इतना बहुत डिफिकल्ट है, ये सब नहीं करना चाहिए, पर ठीक है आपने पूछा, इसके लिए जवाब दे दिया कि वीक बिलो सीरीज अकरेंस का ये इम्पोर्टेंस है। जब तक जस्टिफाई नहीं होता है, इट इज एन अक्यूमुलेशन। जी। और यहाँ पे रिएक्ट और ये गुड अबव सीरीज जस्टिफाई होके है ना, फॉलो बाइंग आई नहीं है। 9730 ट्रेड कर लिया, 9529 तक रिट्रेस हुआ था, यहाँ तक हम लोग साथ में थे 9529 तक, फिर रिएक्टिव हुआ, तो रिएक्टिव का 9119 लोअर से ट्रेड कर लिया, तो 9584 ट्रेड करेगा, नया तो बढ़ पाएगा। 9019 जो है, यहाँ से भी रिवर्सल सेल हो गया, 8806 आ गया, तो 9019 से टूटना चालू हुआ था, राइट? इसके आगे की बात करते हैं जो लग रहा है। 9019 से रिवर्सल सेल आया जी। यस सर। Who triggered the fall? 9019. From where prices started declining? 9019. Reversal सेल कहाँ से आया? 9019 से। इसीलिए आज 19 मई को 9019 तक ही आया, तो 9019 भी हायर से ट्रेड नहीं कर पाया, रिवर्सल सेल ही है। तो यू नो इट इज वेरी क्लियर कि भाई ये 8806 8708 ये सब लोअर से ट्रेड करके वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हो गया है, क्योंकि 9019 से ही रिवर्सल सेल हो गया ना, जो रिसेंट है उसको पकड़ के रखते हैं। 9019 नेक्स्ट लेवल 8990 ये ट्रेड करके पीसीआर से बंद भी हो गया, लोग रिवर्सल। रेयर ऐसा हमने देखा है कि वही भाव वापस जो हायर से ट्रेड कर लिया। बराबर ना? जी सर। आज आ गया वहां तक, हो गया 9019।
कल का प्लान क्या होता है? कटिंग द फ्लाइंग काइट 9030, 90109, 9039, ये सब 9072 ट्रेड कर पाए तो ही बोलेंगे कि भाई ये 9019 इज नॉट रेस्पेक्टेड। बाकी 9019 के नीचे यानी कि 9072 के नीचे निफ्टी में बाइंग नहीं ढूंढनी है, सेलिंग ही ढूंढनी है जी। फॉर द टारगेट ऑफ 8708 ओके। बाइंग। ये तो ब्लैक कलर है सर वो नहीं, कल आज हुआ है। बोला नहीं किसी ने। एक सेकंड। नहीं, अपलोड हो रहा होगा सर वो। नहीं अपलोड हो रहा है तो पुराना अक्रम थोड़ी ब्लैक कलर होना। 1 सेकंड, गिव मी 1। बोलिए। सर ये हम जो अभी बात कर रहे हैं तो ये कल वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई हुआ है, तो उसकी फॉलो अप सेलिंग उसका डिफरेंशियल तोड़ने से बाद ही देखनी है। ये ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई होकर इसके पहले क्या था? किलो ट्रेडेड थे। कृष्ण, ये तो यहाँ भी ब्लैक कलर है इसके लिए। ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई, यहाँ पे ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई होकर इसमें कभी फॉलो बाइंग नहीं है। 21,340 हाई है। इसका जो 29 अप्रैल का 29 अप्रैल का पोस्ट क्लोजिंग लैंडिंग बाय 21,359 है और 21,359 का नेक्स्ट लेवल 540 है। ये ट्रेड किया है ना, मतलब वो सीरीज नहीं आरएमएसएल हायर खुला था, आरएमएसएल हायर खोल के भी 61.8% से बाइंग आई है, जो हम हमेशा करते हैं आरआर में। 61.8% से कंसीडर मत कीजिएगा, 38.2 या 100%। अकॉर्डिंगली ये फिर कभी हम एस्टैब्लिश भी करेंगे आगे जाके। तो जो मैं कहता हूँ, अगर आप लोगों ने समझा होगा कि ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो, उसमें एक उल्टा ट्रेड भी होता है। तो ये हम फिर कभी स्टडी करेंगे कि 61.8% से बाइंग आती है और 100% ट्रेड नहीं करता है उस दिन, तो फॉल्स बाइंग हो गई, वो ट्रैप ही है, बुल ट्रैप है। 8% से बाइंग आई, बट वो बाइंग हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो ग्लोबल सीरीज जस्टिफाई होने के बाद में इसने कभी फॉलो बाइंग नहीं, ग्लोबल सीरीज इनएक्टिव हो गया। इसका किलो 19,051 है और ये किलो भी यहाँ पे ट्रेड हो गया और ग्लोबल सीरीज रिएक्टिव होने से भी वो मिस हो गया। तो यहीं पर ये वीकनेस आ गई थी। तो जब इसने किलो ट्रेड किया तो मास्टर है उसका 21,122 है,
जो उसमें रिएक्टिव होते होते बचा हो, तो 21,122 ने उसको बढ़ने नहीं दिया, राइट। एंड जी यहाँ से 20,122 और वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई भी हो गया। अभी क्या पूछना चाहते हो इसमें? जस्टिफाइड की फॉलो अप सेलिंग अभी आएंगे बाद में ही, हमको वापस सेल पे घर में बैठना है। हम बोलते हैं ना कि वीक बिलो जस्टिफाई होने के बाद उस दिन का रजिस्टर सर्टिफिकेट वो फ्रेम्ड है, फ्रेम फ्रेम्ड। थोड़ा एक लेवल ऊपर जाते हैं कि यहाँ पे ये सेलिंग में चल रहा है, वीक बिलो सीरीज जस्टिफाइड, किलो ट्रेडेड, सेल, इनएक्टिव, रीएक्टिव, ये सब सेलिंग, फॉलो अप सेलिंग, ये सब आ चुका है घर के घर में। और ये बुल के घर में आया, लेकिन बुल जस्टिफाई नहीं कर पाया अपने को, टिक नहीं पाया। बोलिए सर। टिक नहीं पाया, तो ऑलरेडी ये फॉलो अप सेलिंग भी चल ही रहा है ना। यस सर। और ओके ये जो था, ये गुड सीरीज जस्टिफाई होना और फॉलो अप बाइंग नहीं आना और इनएक्टिव होना और ये 21,967 आना, व्हाट इट वाज डिस्ट्रीब्यूशन पुल बैक बाय। यस सर। तो यहाँ पे पुल बैक बाय कंप्लीट। ओके डोंट बिगिन या रिएक्टिव होना, डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट। और फिर सीरीज अकर होके वीक बिलो सीरीज जस्टिफाई होना। तो आप मुझे बोलो कि क्या इसको एक फॉलो अप सेलिंग की जरूरत है? हाँ, हम मैथमेटिकली जो सीखे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि हाँ जरूरी है। बट व्हाट इज योर इंस्टिंक्ट सेइंग, क्या जरूरी है? नहीं है। बस खत्म हो गई बात। तो कब जरूरी है, जरूरी नहीं है, ये भी यू नो आंसर मिल गया सर। श्योर। ठीक है ना? इट इज नॉट रिक्वायर्ड सेलिंग की। एक्चुअल में इसलिए पूछा कि हमारा जो अभी लास्ट है ना वीक बिलो का सीक्वेंस वाला, वीक बिलो कर और किलो ट्रेडेड फिर वीक बिलो जस्टिफाई हुआ, इसलिए ये सीक्वेंशियल सेल है, अकरेंस, जस्टिफिकेशन एंड देन किलो ट्रेडेड। कितना मस्त सेल है सीक्वेंशियल सेल, और उसके बाद में ये अकर जस्टिफाई होके फॉलो बाइंग नहीं आना, कितना मस्त डिस्ट्रीब्यूशन होके फिर टूट रहा हो, वो भी रिसेंट लो भी ट्रेड कर लिया। जैसे क्लियर कट सेल है, कोई फॉलो अप सेलिंग की जरूरत नहीं है। ओके ओके। फॉर्मेलिटी होगी, फॉलो अप सेलिंग जो है फॉर्मेलिटी होगी, नॉट रिक्वायर्ड। ओके चलो ये हो गया। गजानन लास्ट में आ रहे हो आप, मुझे कुछ कहना है? ये ओके, फिर पहले आप कह दीजिए। नहीं आप बोलो, बोलना तो है ना, कहना तो है। ओके, बर्जर पेंट में डेली मुझे क्वेरी देने में कोई जवाब देने में कोई तकलीफ नहीं है, बट मुझे रिक्वेस्ट आती रहती है कि भाई 1 आवर में कंप्लीट करो। मैं शुरू में देखता हूँ कि 3-4 हैंड रेज है, तो अकॉर्डिंगली मैं क्वेरी का आंसर देता हूँ। और फिर सडनली कुछ लोग क्वेरी आती है ना, तो वेबिनार लेट होता है, तो जो रिकॉर्डेड वेबिनार सुनते हैं या रिपीट वेबिनार सुनते हैं उनको तकलीफ होती है। हाँ बोलो। बर्जर पेंट में किलो इज 442 और वो 442 को आके स्टॉप एंड डूअर्स टू बाय हुआ है 12 तारीख को, और उसके बाद में भी और एक बार स्टॉप एंड डूअर्स टू बाय हुआ, तो 12 तारीख से किलो के पास ही है। और आज का जो लो है वो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय के सपोर्ट के एकदम नजदीक है। उसका जो सपोर्ट है 437, तो इट हैज कम टू 435। बट इतना निफ्टी टूटा है लेकिन ये ट्रेड नहीं किया है, तो इट हैज कम टू द हाँ it has come to the tipping point. So I am in this trade from 12th,
बिकॉज 447 पे बाय करके बैठा हूं मैं, अभी एकदम स्टॉप लॉस के नजदीक आया, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग एंड आई विल होल्ड। तो इसका आगे व्यू क्या रख सकता हूं मैं? अगर आई डोंट नो अगर ट्रेड करेगा कि नहीं करेगा, बट अभी तक का इंडिकेशन उसका ये है 12 तारीख से कि वो कर नहीं रहा है, किलो नीचे नहीं ट्रेड कर रहा है। अभी कल मुझे पता चला गलत वे में लर्निंग जा रही है। और अच्छा, ओके। व्यू बेस्ड ट्रेडिंग सीखना हो, हाँ, अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ट्रेडिंग सीखना हो, हाँ, तो उसको सिर्फ सीखने तक रखो अभी। ओके। ट्रेड करके सीखना वो गलत है, ट्रेड लेके अच्छा। सीखना वो गलत है। ट्रेड लेके जो करना है, हमने बहुत हाँ। क्लियरली सीरीज जस्टिफाई हो और फॉलो बाइंग आवे तो बाई करो, इनएक्टिव हो और किलो तक आके फिर फॉलो बाइंग आवे तो बाई करो, रिएक्टिव हो तो फॉलो बाइंग आवे तो बाई करो, 5-5% वो देगा, वहां पे ट्रेड लेके करो। और जहां तक हाँ। अंडरस्टैंडिंग पर्पस है, उस हाँ। अंडरस्टैंडिंग जब तक आपकी सही नहीं हो रही है, जब हाँ। तक वो डाउटफुल है, तो उसमें ट्रेड लेके क्यों अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हो? नहीं, बट हाँ, वो किलो के पास में अगर स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय होता है तो स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय के साथ सपोर्ट के साथ बाय करके बैठो, ऐसा मैंने डिसाइड किया है, ताकि अगले 10 ट्रेड में वैसे करूंगा। ये समझ है कि ट्रेड है? नहीं, ये समझ है कि स्टॉप एंड रिवर्स टू बाय के सपोर्ट के पास में उसके स्टॉप लॉस से मैं बैठा रहूंगा जब किलो के पास आएगा तो, क्योंकि उसकी जर्नी फिर मास्टर हाई तक है, ऐसा समझ है। समझ में ट्रेड मत जाना, मैं इतना ही कह रहा हूँ। अच्छा, समझ, ओके। पहले समझ में रिकॉर्ड शीट समझ रख के इसको प्ले करके आप समझ कि आपकी समझ सही जा रही है कि नहीं जा रही है, वो तो आप खुद अपने आप को वैलिडेट करो। ट्रेड लेके क्यों समझ रहे हो, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। अच्छा, ओके, ओके। नहीं, अभी केस स्टडी हम बात करेंगे। हाँ, हाँ, बट सौदा जो नई समझ है, आपकी समझ सही है कि नहीं, उसके लिए 100-200 सेल लिया तो समझ बराबर है। लेकिन जो रेगुलर ट्रेडिंग है वो हमको कैसे करनी है? 5% के लिए इस तरह से करनी है क्या? नहीं, वो तो पीसीसी भी ट्रेड करे या फॉलो अप बाइंग दे तो ही करना है। तो फिर वो चूक जाएगा। अच्छा, ओके, ओके। अब यहाँ पर दिस नोट दिस डिसअपॉइंट्स मी एक्चुअली। भाई आप समझ जब तक बराबर नहीं होती वो ट्रेडर ट्रेड लोगे, तो जहाँ पे जो फ्रेम ट्रेड सेटअप है वो मिस हो जाएंगे। गुड सीरीज जस्टिफाई हुआ, ओके। यहाँ पे 535.90 से फॉलो बाइंग आई नहीं आई, उल्टा यहाँ से स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ। करेक्ट। तो ये और वो एक्शन में भी आया था। भी किया था, हमने बात भी किया था कि यहाँ से सीधा स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ तो किलो तक की जर्नी आ जाएगी। हाँ, करेक्ट, वो आ भी गई थी। किलो 442 आ गया था। करेक्ट। यस। लेकिन क्या आज तक बुल का घर एस्टैब्लिश हुआ है क्या? नहीं हुआ है। तो फिर हम बाइंग करके कैसे आ सकते हैं किलो के स्टॉप लॉस से, नजदीक का स्टॉप लॉस से बोल के? नहीं, वो आपने कहा हुआ है ना, अगर आप ये स्ट्रेटेजी पकड़ो तो ऐसे 10 बार करो, ऐसे ही करो, भले स्टॉप लॉस लग जाए, बट वही स्ट्रेटेजी पकड़ के रखो। बाइंग आई हो तो रिट्रेसमेंट पे लो। हाँ, हाँ, ओके। क्या फॉलो बाइंग आई है हमेशा ही कि अपने जो लास्ट संडे भी चार्ट लिए? नहीं, एक बार भी नहीं आई है इसमें फॉलो अप बाइंग। और एक यहाँ पे किलो तक आया, बराबर है। किलो से मास्टर हाई क्या है? व्हाट इज मास्टर हाई? 503 है। तो यहाँ किलो से 440 से 465, 463, 471 तक रिट्रेस हो रहा है। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ था, वो 468 ट्रेड करेगा तो ही तो मास्टर हाई जाएगा 503। क्या वो ट्रेड कर पा रहा है?
नहीं, तो कैसे 503 की हम बात करेंगे? हाँ वो तो बहुत घूम घूम के जाएगा। अभी तो आई एम वेटिंग फॉर इट टू, हाँ उसको पहले पीसीसीबी तो ट्रेड करने का वेट कर रहा हूँ। मेरे को वो जिस स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस से वो घूम के सेकंड टाइम किलो के पास आ रहा है, सेकंड टाइम। ओके, हमेशा हमने बात की है कि किलो एक बार सपोर्ट करेगा, अच्छा ओके, दूसरी बार आएगा हाँ। तो क्या करेगा वो? हाँ, दिस इज एडिशनल इंफॉर्मेशन टू मी नाउ, दिस आई अंडरस्टूड। दो बार, हाँ 2 बार आएगा तो चांसेस तोड़ने के ज्यादा है। और सबसे पहली बात, बाइंग का जजमेंट ही नहीं है, बाइंग एस्टैब्लिश ही नहीं हुआ है। जस्ट बिकॉज नजदीक के स्टॉप लॉस से माल मिल रहा है, ये नजदीक का स्टॉप लॉस है ना, दिस इज द पॉइजन। No, that is a strategy which I adopted, that I will buy whenever it comes to kilo, and अगर वो लग भी जाता है तो भी वैसे ही करूंगा मैं, और ये आपने भी बताया हुआ है। बाइंग का जजमेंट है क्या? फर्स्ट अटेम्प्ट है क्या? नहीं, जब तक किलो नहीं ट्रेड किया तब तक तो बाइंग का ही जजमेंट है ना। कहाँ बाइंग का जजमेंट एस्टैब्लिश हुआ है? आप मत करो ये सब यार, इस तरह से अंडरस्टैंडिंग के साथ। आप है ना सीधा सीधा ट्रेड करो। सर वो लास्ट एक मिनट सर, लास्ट वीक में यही जब मैंने ट्रेड लिया था, आपसे बात किया था, तो आपने बताया था कि वेरी गुड बाय। फर्स्ट अटेम्प्ट है ना, फर्स्ट अटेम्प्ट। हाँ, तो ये आज मैं पूछ रहा हूँ वही क्लैरिफिकेशन के लिए कि अभी आगे इसका क्या व्यू है। वो आज लो आया है, इसी के लिए तो मैं ये क्वेरी पूछ रहा हूँ ना। दो बात लिख लो, दो बात लिख लो। हाँ, एक फॉलो बाइंग आवे ना तो ही बाइंग का जजमेंट मिलेंगे। ओके। दूसरा, किलो के बाद पास फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलता हो ना, तो ही बाई करेंगे। ओके, वो भी हाँ, तो ये फर्स्ट अटेम्प्ट, ये भी, लेकिन ऐसे 10 ट्रेड करोगे तो प्रॉफिट होगा। I agree with you, because in one of the webinar I also heard that one of the participant had seen 6 trades like this, and he had taken 3 trades out of that. In last week he spoke about that, and that is the same strategy, buying near the kilo. Buying का judgment तो नहीं, वो तो that I understand कि एक बार तो उसने पीसीसीबी ट्रेड करके बाइंग का देना चाहिए क्लू, तो हम रिट्रेसमेंट पे बाय करेंगे, ये दूसरी स्ट्रेटेजी हो गई। यहाँ पे किलो से ये रिवर्स हुआ 11 मई को, या और वहां से स्टॉप एंड यूज टू सेल हो गया। या स्टॉप एंड यूज टू सेल का जो पीसीडीएस है 442, ये यहाँ पे लोअर से ट्रेड कर लिया ये 2 दिन में? ना नहीं किया है। 442 का नेक्स्ट लेवल 437 है, हाँ, तो नहीं किया है, दोनों दिन नहीं किया, आज भी नहीं किया है। दैट इज व्हाट इज माय पॉइंट, कि इसने अभी किलो नहीं ट्रेड किया है, और ये अभी सेकेंड टाइम किलो के पास आया जो आज ये आपने बताया, तो दिस इज वन मोर पॉइंट टू नोटेड कि भाई सेकेंड टाइम फिर आपको इसमें नहीं रहना है। बट अभी मार्केट जो इतना टूटा है वो इसने किलो अभी तक नहीं ट्रेड किया है, विच आई कंसिडर इट एज अ वेरी गुड पॉइंट, कि निफ्टी इतना टूटने के बावजूद भी ये स्टॉक किलो नहीं ट्रेड कर पा रहा है। तो अभी तो ओके, आई विल वेट फॉर स्टॉप लॉस टू हिट टुमारो, और इट गोज रिवर्स विल कम, बट इट हैज कम टू tipping point. That is what I want to say, and I wanted to have your view on this. What should be the next outcome of this? If it trades, then it goes into selling, and stop and reverse to support, stop and reverse to buy का support trade करेगा, किलो ट्रेड करेगा, और वो स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का वो एक्शन में भी आ जाएगा। ऑल 3 थिंग्स विल हैपन विद ट्रेडिंग किलो बिलो एट द सेम टाइम, सो दैट इज अ टिपिंग पॉइंट व्हिच हैज कम टू। स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल का रेजिस्टेंस का पीसीडीएस इज आल्सो 442.95, व्हिच इज द लो। नागले सर, या ये समझ बेस्ड जो ट्रेडिंग है ना, हाँ,
पहले हिस्टोरिकल रिपोर्ट पे करो, वो सही जाता है ना। Yeah, I have started doing case studies. I'm not able to explain you कि यहाँ पे जब स्टॉप एंड यूज टू सेल हुआ ना 11 मई को, बाइंग का जजमेंट होके स्टॉप एंड यूज टू सेल होता है ना, तो वहीं पे समझ में आता है कि ये किलो ट्रेड कर लेगा। आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन। 12 मई को ये स्टॉप एंड यूज टू बाई हुआ ना, उसके बाद में ये 460 स्टॉप एंड यूज टू बाई इन एक्शन नहीं आ पाया ना, तो यहीं पे समझ में आता है कि ये किलो ट्रेड कर लेगा। यहाँ पे स्टॉप एंड यूज बाई हुआ ना, यहाँ से 465 ट्रेड नहीं कर पा रहा है ना, स्टॉप एंड यूज नहीं बाई कर इन पा एक्शन रहा आ रहा है ना, नहीं तो आ रहा यहीं है। पे समझ में आ रहा है कि किलो ट्रेड कर लेगा। ओके 13 मई को स्टॉप एंड यूज टू सेल के रेजिस्टेंस तक आया ना, और आरएमएसएल हायर खुल के पोस्ट लूजिंग क्लाइंबिंग पे ट्रेड नहीं कर पाया ना, ओके वही समझ में आ रहा है कि किलो ट्रेड कर लेगा। ओके और ये सब समझ जो है फ्रेम नहीं कर सकते हैं। ओके सो दैट मीन्स ऐसे वाले आई अंडरस्टूड नाउ। समझ वाला बात है ना, मुझे पता नहीं, निकालना पड़ेगा वेबिनार में से, उन्हें सिखाने में से, सामने बैठ के ही करना चाहिए सब। और समझ के ट्रेड, समझ के ऊपर ट्रेड नहीं लेना है, समझ के ऊपर खाली पहले हिस्टोरिकल पे स्टडी करो। इसमें जो एक्चुअल ट्रेड है ना, माय वरी इज कि गुडोबो सीरीज जस्टिफाइड एंड फॉलो बाइंग कम्स, इनएक्टिव अकर्स एंड फॉलो बाइंग कम्स, रिएक्टिव अकर्स एंड फॉलो बाइंग कम्स, वो 5% वाले ट्रेड है ना, मिस हो जाएंगे। क्योंकि आपने जब ये ट्रेड को पकड़ के रखा हुआ है, तो हम सबकी एक फाइनेंशियल कॉम्पिटेंसी है, हम सबकी एक मेंटल कॉम्पिटेंसी है, हम सबका एक ओपन ट्रेड रखने की कॉम्पिटेंसी है कि मैं 4 रखूंगा, 10 रखूंगा या 20 रखूंगा। उसमें से एक ट्रेड अगर इस तरह से हाथ में रह गया, तो जहां जहां बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है, जहां पे फॉलो बाइंग सेलिंग आ रहा है, वो मिस हो रहा है। नहीं सर, I have traded Kolpal. I am in Kolpal as well as also in TCS, and this is there from 12th May. तो 3 ट्रेड में हूं मैं, एंड कोलपाल वाज रिसेंट हाई भी ट्रेड किया था, आरसी 100% ट्रेड किया था, तो उसमें भी बाइंग में बैठा हूं मैं। ये तीनों ट्रेड में हूं, तो वो दोनों ट्रेड तो नहीं मिस हुए हैं। दिस इज क्वेरी बिकॉज ओके देयर विल बी आप क्वेरी पूछो ना, पूछो, ट्रेड लेके मत पूछो। अच्छा ओके ओके ओके, क्योंकि समझ जो है, अभी यहाँ पे इतना मैंने कह दिया, बराबर है। हो सकता है कि ये किलो ट्रेड नहीं करे, और हो सकता है 471 आगे ट्रेड कर ले, ये भी हो सकता है। मेरी समझ भी गलत हो सकती है, आपकी समझ भी गलत हो सकती है। तो समझ जो है उसको 2018 से लेके 10 स्क्रिप्ट के ऊपर लिख लिख के समझो। मैंने ये बात कम से कम फोन पे भी आपको आधा आधा घंटा समझाया है। नहीं, this I have started now doing. Last 10 days onwards, I have started doing case studies. I am supported now. नहीं, am I able to explain you? Yeah, I understood. तब मेरा जजमेंट सही नहीं जाता है, रीडिंग का जजमेंट, तब तक सौदा लेके नहीं समझना है। ओके ओके, तब तक सौदा वही लेना है जहाँ पे फ्रेम्ड ट्रेड सेटअप आपको दिया हुआ है सर। ओके, जहाँ पे 5% अपने को मिल ही रहा है, वहां पे सौदा लो ना, वो कह रहा हूँ मैं। okay. I agree. That is why I told you that I have already done in Kolpal and TCS. And tomorrow I'll be trying Infratel also, because वो भी during dark green में stop and reverse to sell का reversal buy होने वाला है कल Infratel. So that is the 4th trade which I'll be taking for 5% gain. So दूसरे भी कर रहा हूँ, और ये किलो के पास वाला एक था। ठीक है, इसका एक्सट्रैक्टेड एसेस 3 बात है, इतनी लंबी बात हुई है। तो एक तो बाइंग का जजमेंट एस्टैब्लिश नहीं हुआ है, इसलिए किलो के पास फर्स्ट अटेम्प्ट में मिलता हो या सेकंड अटेम्प्ट पे मिलता हो, नहीं लेना चाहिए। ओके ओके, और सेकंड, बाइंग का जजमेंट अगर एस्टैब्लिश हुआ भी रहता, फॉलो बाइंग भी आया रहता, तो भी सेकंड अटेम्प्ट में किलो के पास नहीं लेना चाहिए। इफ आई कैन एक्सप्लेन। Oh, I understood now. Understood now. This point I understood very well. कि एक बार तो फॉलो बाइंग आनी चाहिए। नागले, मेरा पेन क्या है मालूम आपको? वो पेन क्यों नहीं है मुझे समझ में नहीं आ रहा। मेरा पेन क्या है कि कल इसमें आपका 5-7 रुपया जाएगा, और फिर वो 7 रुपया देके समझो। उससे अच्छा अच्छे से प्रैक्टिस करके बाद में करो।
ट्रेड लेके मत करो। सर ये ट्रेड जब भी मैंने लिया था, आपसे पूछा भी था वेबिनार में, आपने बताया भी था कि वेरी गुड बाय। ये आज सिचुएशन चेंज हुई है जब वो दूसरी बार किलो के पास आया है, या और आज मैं पूछना भी उसी के लिए हूँ। कर लिया ना तो मेरा टेम्परामेंट तो हिल जाएगा। पता नहीं आपका टेम्परामेंट इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाऊंगा कल अगर किलो ट्रेड कर लिया। नहीं, अभी क्या है, 10 ट्रेड करूंगा, उसमें कुछ के स्टॉप लॉस लगेंगे, कुछ के नहीं लगेंगे, बट वो स्ट्रेटेजी तो वो अडेप्ट करूंगा ना मैं, कि किलो के पास बाय कर लूं। अगर एक बार भी फॉलोअप बाइंग नहीं आई, किलो के पास आया है, स्टॉप एंड डिवर्स टू बाय हुआ है, ये तो स्ट्रेटेजी है ना, कि उसके सपोर्ट से बाय कर लो। ये आप ही ने बताया हुआ है। फॉलोअप बाइंग आई हो तो, और फर्स्ट टाइम आया हो तो। हाँ, तो फर्स्ट टाइम ये बाय किया था मैंने 12/5 को, तो 12/5 447 के। हाँ, तो सीधा नेक्स्ट 471 ये रेजिस्टेंस के पास बिकता है तो नहीं बेच, प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। इज इट नॉट 5%? वो कर लिया मैंने बुक, वो 440-67 बुक करके वापस वो कम अभी 438 पे इनिशिएट करके बैठा हूँ आज। अच्छा ठीक है, एकदम क्लोज टू स्टॉप लॉस। दिस वर्ड्स मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूँ कि क्लोज टू स्टॉप लॉस। हाँ, अभी वो एक 2-3 पॉइंट का चांस है, 437 और 438 उसका स्टॉप लॉस कल 430 ट्रिगर करेगा। वो प्रॉफिट तो बुक कर चुका हूँ, जब उसने स्टॉप एंड डिवर्स टू सेल हुआ तो ऊपर में एग्जिट होके वो 15 पॉइंट का प्रॉफिट तो ले चुका हूँ मैं। तो दे देंगे कल वापस? नहीं देंगे ना, अभी तो जब वो इतना नजदीक आया 435 के, तभी तो कल भी था। इसके लिए मैंने वहां पे किया है कि वो चांस है, आइदर वो ट्रेड करेगा या नहीं ट्रेड करेगा। अच्छा ठीक है, बट अगर यहाँ से एक स्टेटमेंट लिख लो। मैं इसको लंबा नहीं खींचना चाहता हूँ, बहुत लंबा खींच लिया हमने, बहुत तेज कर लिया इसको। एक स्टेटमेंट लिख के रख लो जो शायद आपको 3 महीने बाद समझ में आएगा, जो आज मैं नहीं समझा सकता। ओके, बोलिए। डोंट बाय, नेवर बाय just because it is available. Nearer to the support level until buying judgment is confirmed. This one sentence I'm trying to explain you for half an hour. I'm not able to explain. I'm falling short. No, I understood this. Okay. Thank you. Thank you. Yeah. हाँ निखिल बोलो। नहीं सर, you can give your view actually. My query was in Bank Nifty, but we can go ahead. क्या प्रदीप, मैं आपको बोला मैं वापस आता हूँ आपके पास, क्या हुआ? हाँ सर आइए वहाँ पे एसीसी में। सर मुझे लगा भूल गए। एनीवे लेट भी हो गया बहुत। आज का नहीं बोलता हूँ ना। हाँ, एकदम नीचे आना पड़ेगा सर। यहाँ पे ये जब भी 13th को जब भी ये SNR2 सेल हुआ था, उसका PCDS था 1189.10। वो जो सपोर्ट था वो ट्रेड नहीं कर पा रहा था 2 दिन से, 14th और 15th को। वो उसने 18th को तोड़ दिया तो नीचे आ गया। मैंने पूछा था आपको कि बाजार कहां से टूटना बंद हुआ और 1257 आया। ऐसा कौन सा भाव था जहां से प्राइसेस स्टॉप फॉलिंग, स्टार्टेड राइजिंग एंड अप्रोच 1257, और वही भाव ट्रेड करेगा लोअर साइड तो वापस टूटेगा? ये सवाल था मेरा। अच्छा, बढ़ना स्टार्ट हुआ तो आप ये SNR2 बाई का जो मैं देख सकता हूँ 1139, बस उसके पहले 1139 से टूटना बंद हुआ, बढ़ना चालू हुआ, 1257 तक आया,
57 से वापस टूट रहा है, 1139 ट्रेड करेगा तो न्यू राउंड ऑफ सेलिंग विल बिगिन। हाँ, तो सर वो बीच का जो जर्नी है वो कैसे लूंगा? जैसे 1200 टू 1134 ये जो फॉल हुआ तो था, हमने बात की ना कि यहाँ से 1257 से बाइंग खत्म हो गई थी, अभी तो बात की कितनी लंबी, वापस वेबिनार नहीं सुन वो लेना। ठीक है, नहीं वो सर मैं तो इसीलिए सेल किया तो सेलिंग की है, बट ये जर्नी इज अप टू 1139 when trades on lower set, new round of selling will begin. नो सर ये बात नहीं हुआ था सर। 18th को मैंने बोला आपको कि मैं रिट्रेसमेंट के लिए वेट कर रहा था, जो नहीं आया, तो अगर वो छूट जाता है, रिट्रेसमेंट नहीं हुआ, तो मैं उस दिन मैं ट्रेड ले सकता हूँ क्या? वो बाद में मतलब लोअर बैंड ट्रेड करे या 100% ट्रेड करे, तो वो ट्रेड करना ठीक होता क्या? सेलिंग के जजमेंट में WTP ट्रेड करके सेलिंग आती है तो लोगे कि नहीं लोगे? हाँ, तो लोन लेना चाहिए। ठीक है, ओके। बाइंग के जजमेंट में BTP ट्रेड करके बाइंग आती है तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? सेलिंग के जजमेंट में WTP ट्रेड करके सेलिंग आती है तो लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? हाँ सर। ठीक है, हाँ ठीक है सर। मुझे ये कहना था, एक्चुअली शुरू में कहना था, बट शुरू में सब लोग थे नहीं, देन नो वो मिस हो जाता है, तो 10 मिनट के बाद आप काफी लोग लेट ज्वाइन हुए। आई एम हियर, ये बहुत मस्त ट्रेड सेटअप है टिल फ्राइडे के लिए, इस वीक के लिए। सेलिंग इन ट्रेंडिंग 52 स्क्रिप्ट्स है, इसमें हमने लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग किया है और करंट टाइम फ्रेम रिट्रेसमेंट किया है। और इसमें मुझे ज्यादा इंटरेस्ट इसलिए ये पुश इसलिए करना चाहता हूँ मैं, ये सब RMS से लोअर खुल के है ना रिट्रेस हुआ है, RMS से लोअर खुल के फ्रेश रेजिस्टेंस देके है ना रिट्रेस हुआ है, ये सब पूरी की पूरी ATR जर्नी देगा। और अगर फ्राइडे अगर ATR जर्नी कंप्लीट होती है तो ATR जर्नी एक्सटेंड भी हो जाएगी। तो जहां जहां खास करके RMS से लोअर खुल के रिट्रेस होके या फ्रेश रेजिस्टेंस देके रिट्रेस होके अब डेली टाइम फ्रेम में अगर सेलिंग मिलती है, रेजिस्ट मिलता है, तो मुझे 23 स्क्रिप्ट्स में ऐसा लगता है कि मस्त सेलिंग मिलेगी और बारी बारी से मिलेगी, टर्न बाय टर्न मिलेगी। तो जो डेली में रेजिस्टेंस मिलते हैं 23 स्क्रिप्ट्स में बेचना चाहिए। 3 बात हमको चेक करनी है, एक वैलिड सेल है क्या, तो यहाँ पे रेंज और डायरेक्टर पैटर्न दोनों हम देख रहे हैं, तो वैलिड सेल है तो सेलिंग के लिए बेस्ट कैंडिडेट है। फिर डेली में कम से कम अकॉर्डिंग टू RAR डेली सेलिंग है क्या, तो यहाँ पे सब जगह डार्क ग्रेड लिखा हुआ है, डार्क ग्रेड से वीक बिलो सीरीज दिया हुआ है, तो ये अकॉर्डिंग टू RAR भी सेलिंग है। थर्ड थिंग, रिसेंट लो सामने नहीं है ना, और रिकॉर्ड शीट समरी में जाके देखना है कि मैं जब बेच रहा हूँ तो एक बार बेच देना, और सामने अगर रिसेंट लो हो तो नहीं बेचना बस। बाकी otherwise it is a all these 23 scripts are very good sell. The reason is सेलिंग का जजमेंट है, लाइव अपॉर्चुनिटी सेलिंग में फर्दर आ रहा है और करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिले, जैसे निफ्टी भी है, RMS से लोअर खुला, उसको रिट्रेस होना था, वो रिट्रेस हो गया। अब लोअर टाइम फ्रेम में अगर रेजिस्टेंस मिले तो ये सब स्क्रिप्ट्स जो है RMS से लोअर खुल के सेलिंग के जजमेंट में रिट्रेस होके सीधा ATR जर्नी कंप्लीट करता है। इसी तरह से बाइंग की स्क्रिप्ट्स भी है 3, इसमें हमने मेरी को बात की थी कि भाई 325 के ऊपर जाएगा तो ये बहुत बढ़ेगा करके, तो यहाँ पे ICFC खुल के एक्टिव सपोर्ट मिलकर ये रिट्रेस होके चल रहा है, और रिट्रेस होके कल अगर बाइंग आती है तो ये 18 मई का जो स्टॉप एंड यूज टू सेल है उसका रेजिस्टेंस है 321.90, यहाँ तक तो जर्नी आएगी। और इसका जो हमने 327 का भी रेजिस्टेंस बात किया था रिकॉर्ड शीट समरी में, तो बहुत जल्दी यहाँ पे मेरी को में अकॉर्डिंग टू दैट सेटअप 327 के ऊपर बाइंग आएगी। लेकिन एक्टिव ट्रेडिंग में अगर रिट्रेसमेंट होकर लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलता है, मतलब बहुत मच मोर इन एडवांस वी कैन प्रोजेक्ट कि 327 तो मेरी को ट्रेड कर लेगा। मुथूट फाइनेंस में इसलिए बाइंग है कि ये नॉकनोगिन RC है और फॉलिंग चैनल में
फ्रेश रेजिस्टेंस देकर, ये रेजिस्टेंस फ्रेश दिया हुआ है और फिर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है, तो फ्रेश रेजिस्टेंस इन एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय अकर होता है। तो बीडीपी आईसीआरआर में है, नॉकनॉक इन आरसी में है, तो ये भी आरसी 23.6 की जर्नी बहुत इजी है। तो इस तरह से मैरिको एंड मुथूट फाइनेंस बेस्ट बाई है। एस्कॉर्ट जो है आईसीएफसी खुल के ये थर्ड बेस्ट बाई है कि भाई ये इंटरचैनल जोन का रिट्रेसमेंट है, फ्रेश सपोर्ट का रिट्रेसमेंट नहीं है, तो ठीक है ना, दिस आल्सो इज ए गुड बाय, क्योंकि यहाँ पे 18th में को ये स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ है एंड 18th में को अगर स्टॉप एंड यूज टू बाय हुआ हो तो इसका बीडीपी क्या है 821 हाफ, तो 841.10 जो है वहां से स्टॉप एंड यूज टू बाय इन एक्शन आएगा 821 हाफ से, तो दिस इज द थर्ड बेस्ट बाय। तो इस तरह से ऐसे बाकी भी 5 तरीके से लो टाइम फ्रेम से हमको बाइंग मिलती है। जैसे फॉलो लो टाइम फ्रेम में फ्रेश रेजिस्टेंस एफसी एंड स्टॉप एंड यूज टू बाय अबाउट डब्ल्यूडीपी हो तो एक बेस्ट बाय है। सेकंड बेस्ट बाय करंट टाइम फ्रेम में रिट्रेस होके लो टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिले तो बेस्ट बाय है। थर्ड बेस्ट बाय ये है कि लो टाइम फ्रेम में फ्रेश सपोर्ट ही मिल जावे अपर बैंड ट्रेड करके, वो भी बेस्ट बाय है। फोर्थ है अक्यूमुलेशन, ये लो टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस से चल रहा हो तो इट इज नथिंग बट अक्यूमुलेशन, तो ये अक्यूमुलेशन वाली स्क्रिप्ट जो है वो भी मैरिको में आ रही है कि भाई ये रेजिस्टेंस देकर फिर सपोर्ट दिया है, तो दिस इज अकॉर्डिंगली ये बेस्ट बाई है। ये मैं चाहता हूँ कि भले ही फॉलिंग मार्केट हो लेकिन फॉलिंग मार्केट में भी जो बाइंग की स्क्रिप्ट्स है अगर उनको उसको ऑब्जर्व करेंगे और उसके टारगेट आते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल जो है, कन्विक्शन लेवल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। एंड जस्ट यही बात मुझे शेयर करनी थी कि ये अपना मुझे बाकी सब सेटअप में अभी है ना इमीडिएट इस वीक में ट्रेड्स आपको मिले वैसा दिख नहीं रहा है, मिल भी सकता है, ट्रैक करते रहो, लेकिन ये ट्रेड्स जो है कि आरएमएसएल हायर खुल के रिट्रेस होकर फिर लोअर टाइम फ्रेम में सपोर्ट मिलना या आरएमएसएल लोअर खुलकर रिट्रेस होके फिर लोअर टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस मिलना, और वो ड्रिफ्टिंग सेल ट्रेड करते ही पूरी एटीआर की जर्नी दे देता है, दैट वी शुड नॉट मिस एक्चुअली, and we should grab all these opportunities also, right? कम से कम ऑब्जर्व कीजिएगा, ट्रेड करें नहीं करें हम कितना ट्रेड करें बट ऑब्जर्व जरूर से कीजिएगा, राइट। लव यू ऑल, रेस्पेक्ट यू ऑल, थैंक यू ऑल, ट्रस्ट यू ऑल, बाय बाय।